Good evening, all the dear delegates. Good evening, respected delegates. Am I audible to everyone very clearly? Can you just put in the chat box? We'll start the session very soon. Thank you, thank you, thank you. So, my dear delegates, it gives me immense pleasure and honor today to welcome you all for the today's session. Today, we are truly privileged to have among us a very renowned and respected personality in the field of Ayurveda, that is Dr. Sarika Londe ma'am. She is widely known for her exceptional expertise in managing female health concerns through classical Ayurvedic principles. Her clinical approach, depth of knowledge, and compassionate care have helped countless women regain their health and confidence naturally, because we have seen many of the earlier lectures also. You have seen numerous cases. She has presented numerous cases, difficult cases, which she have solved so easily, so comfortably. And that is just because of her deep knowledge in the subject. So today, Dr. Sarika Londe ma'am, she has dedicated Dr. Sarika Lundi ma'am, she has dedicated her complete life, her complete career of practice to understand and to treat the complex gynecological disorders, especially those that are often challenging and recurrent in nature. Her work beautifully bridges traditional Ayurvedic wisdom with practical clinical application, making her guidance extremely valuable for all of us as practitioners. So today's topic is somewhat very much important, and at the same time it is quite challenging, because we all know how challenging the cases of endometriosis and adenomyosis are. It is a condition that many of us as a clinician often find difficult to manage due to its chronic nature, to its recurrence, and due to the impact of that disease on the women's quality of life. The patient, it affects the quality of life of that patient. It not only affects physical health, but also there are, you can say, deep emotional and psychological impact on the patient's life. Okay. So many times we feel hesitant or even fearful while dealing with such cases due to limited long term solutions in conventional approaches, or we find it difficult to correlate it with the Ayurveda, right? Or we don't understand what Ayurveda perspective should we give for these diseases. But Ayurveda offers a holistic and root cause based perspective. Recently, I have, under the guidance of Dr. Sarika Londe ma'am, even I have successfully treated the cases which she was suffering, like she was suffering from more than 12 years from endometriosis. And there was one more case, she was suffering from nine years due to adenomyosis. So under Sarika Londe ma'am's guidance and the lectures which she has taken on our platform of IIAS, I understood the management of this condition, and I tried to give best to my patients. And I'm also I would also like love to share that they got successfully treated with this approach, which today Dr. Sarika ma'am will be presenting in front of us. So through this today's session, we will get an opportunity to learn the Ayurvedic perspective of endometriosis, practical clinical approaches, effective treatment protocols, and valuable insights from Dr. Londe ma'am. So I am confident that this session will not only enhance our knowledge but also empower us to handle such cases more confidently in our clinical practice.
So without taking much of your time, let us begin this enlightening session. Are you all eager to know about this session very deeply, to understand endometriosis, to understand adenomyosis? If yes, please type Y in the chat box. Once again, I welcome all of you. Once again, I welcome Dr. Sarika Londe ma'am on IIS platform. Thank you. And let's get started. थैंक यू मैम। आज का जो ये लेक्चर है इसको हम बेसिकली थोड़ा से बहुत ज्यादा मतलब उसको सिवेरिटी से नहीं लेंगे या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से उसको नहीं लेंगे। हम इसको सिंपली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या सिंपली किस तरीके से उसको देख सकते हैं इसके बारे में आज हम सोचेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम नाम से ही घबरा जाते हैं, एंडोमेट्रियोल है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, तो नाम से ही हमें डर लगता है और हमें ऐसा लगता है कि नहीं इतना बड़ा ये कॉम्प्लेक्शन या इतने बड़ी उसमें कॉम्प्लिकेशंस है तो ये हम नहीं ट्रीट कर पाते। ऐसा हमारे मन में अगर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो हम इस पेशेंट को ट्रीट भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट को हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं, हमारे दोष धातु मल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो डेफिनेटली हम इस पेशेंट को रिजल्ट अच्छी तरीके से दे सकते हैं। यही आज हमें सीखना है कि इसको किस तरीके से देखना है, किस तरीके से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को सॉल्व करना है। क्योंकि आप सिंपल वे से जाओगे तो आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होती है वो सिंपल वे से मिलती भी है और आप पेशेंट को कम समय में ज्यादा रिलीफ भी दे सकते हो। तो यही हमें सब सीखना है आज। तो मैं मेरी पीपीटी शेयर करती हूँ और आज के लेक्चर की शुरुआत करती हूँ। मेरी पीपीटी विजिबल है ना सबको? यस ओके। यस डॉक्टर। यस यस ओके ओके। आज के लेक्चर की शुरुआत हम धन्वंतरी स्तवन से करेंगे। मैं सबको विनती करती हूँ कि हाथ जोड़े और धन्वंतरी जी को नमन करें। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिष्टतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुस्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तन् निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ धन्वन्तरये नमः। अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। ओम। हमारी कर्मभूमि को प्रणाम, हमारे स्टाफ को प्रणाम। आज का जो लेक्चर है एंडोमेट्रियोसिस और एडेनोमायोसिस, इसके ऊपर आज हम सोचेंगे। तो अभी पहले हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में देखेंगे। एंडो मतलब क्या है, इसके नाम में ही आप देखोगे तो एंडो मीन्स इनसाइड और विद इन। मेट्रियो म्हणजे मेट्रियम मतलब रिलेटेड टू मेट्रियम है। ऑसिस मतलब ऐसी कंडीशन जो एबनॉर्मल कंडीशन है या डिसीज कंडीशन है या इंफ्लेमेटरी कंडीशन है, उसको ऑसिस ऐसे बोलते हैं। तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। एंडोमेट्रियोसिस इज द वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड फैसिनेटिंग बिनाइन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली क्या होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होते हैं वो यूटेराइन कैविटी में इम्प्लांटेशन उसका होना शुरू हो जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये त्रिदोषज कंडीशन है। क्योंकि ये ट्रीट करने के लिए हमें डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि इसमें दोषों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, ये त्रिदोषज इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ऐसे इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोष कौन सा? तो वात और पित्त, ये दो दोष डोमिनेंट होते हैं। और उसको साथ कौन देता है? तो आम देता है। मतलब दोषा तो डिस्टर्ब है, लेकिन उसको साथ देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है आम। तो आम क्यों तैयार होता है? अगेन वो अग्निमांद्य से ही आम तैयार होता है। पूर्ण नको लावू, मला नेट कनेक्शन कमी येतं. अगेन वो आम जो बनता है वो अग्निमांद्य होने की वजह से आम बनता है। और उसकी वजह से क्या होता है? तो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, और ऑब्स्ट्रक्शंस आने की वजह से वहां पे संप्राप्ति जो होती है वो तैयार होती है। संप्राप्ति मतलब वहां पे एडिजन्स तैयार होना, या वहां पे जो पैचेस होते हैं वो पैचेस वहां पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वहां पे अग्नि अच्छा ना होने की वजह से जो आम वहां पे गया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वो आम वहीं पे क्या होता है? ग्रो होना लगता है, और वहीं पे वो अपनी ग्रोथ बना के रखता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मेट्रियोसिस। तो उसकी वजह से वहां पे इंफ्लेमेशन होना, वहां पे टिश्यू की ग्रोथ होना, और वो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको कॉम्प्लिकेशन में डालना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ वो कॉम्प्लिकेशन में गया है, हम ये कैसे समझते हैं? तो पेशेंट को फिर पेन शुरू होता है, कभी कभी किसी को एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, कभी कभी किसी को वहां पे फॉर्मेशन ऑफ मास या ग्रंथि बनती है या सिस्ट बनता है। तो इससे हमें पता चलता है कुछ तो भी प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम जब डायग्नोसिस क्या इन्वेस्टिगेशन है वो करना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है सोनोग्राफी में एंडोमेट्रियोसिस है या एडेनोमायोसिस है। ये गायनेकोलॉजिकल ऐसी कंडीशन है जहां पे एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होते हैं, जो लाइनिंग नॉर्मली यूटेरस में ग्रो होती है, वो आउटसाइड ऑफ द यूटेरस या ओवरीज में या फैलोपियन ट्यूब में या पेल्विक लाइनिंग पे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग ये बेसिकली डिफाइन होता है। मतलब अगर इन बिटवीन यूटेरस में वो है तो फर्स्ट डिग्री, अगर यूटेरस के बाहर मतलब ट्यूब्स में गया है तो सेकंड डिग्री, उसके बाहर मतलब ऊपर के फंडस की तरफ गया है तो फोर्थ थर्ड डिग्री, उसके भी पेल्विक लाइनिंग में वो गया है तो उसको फोर्थ डिग्री। ऐसे एंडोमेट्रियोसिस की भी डिग्री होती है, और उसके अकॉर्डिंग वो स्प्रेड उसका कैसा है उसके ऊपर डिफाइन होता है कि उसकी डिग्री कितनी है। लेकिन जनरली पेशेंट जब हमारे पास कंप्लेंट लेके आता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पेल्विक पेन पेशेंट को होता है, डिस्मेनोरिया होता है, हेवी ब्लीडिंग होता है, इनफर्टिलिटी, या कभी कभी ड्यूरिंग इंटरकोर्स किसी पेशेंट को पेन होते हैं, फटीग होता है। तो इससे हमें वो पता चलता है। इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या इम्यून डिसफंक्शन भी इसमें हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिस्प्लेस एंडोमेट्रियल टिश्यू को अगर हमें नको नको प्राजक्ता, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेस एंडोमेट्रियल टिश्यू अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस है, तो उसको हम एज अ उदावरता योनि व्यापक ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि एंडोमेट्रियल टिश्यू डिस्प्लेस होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हमारी अपान वायु की विकृति है। मतलब अपान का जो फ्लो है वो रिवर्स जा रहा है, जो क्या करता है? रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन करता है। और जो अंदर का लाइनिंग है, मतलब सिंपल सी बात है, जो अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है, मतलब एंडोमेट्रियोसिस बनने का मेन रीजन है एंडोमेट्रियल। तो एंडोमेट्रियल किस तरीके से बनता है? तो हम ऐसे देखते हैं कि जिन पेशेंट की पीरियड साइकिल रेगुलर है 30 डेज तक है, उसमें हम 1 से 5 दिन ये ब्लीडिंग समझते हैं। 6 डे से क्या होता है? नेक्स्ट 28 डेज तक जो भी अंदर की लाइनिंग है एंडोमेट्रियल की वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये 6 to 28 डेज में अगर पेशेंट हमें ऐसा लगता है कि प्रॉपर तरीके से उसका डाइट नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसकी लाइफस्टाइल नहीं है, तो उसकी वजह से, या जिसमें अपान वायु की विकृति ज्यादा है उसकी वजह से वो विमार्ग गमन हो जाता है। जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो विमार्ग गमन होने की वजह से वो क्या होती है? ट्यूब में या ओवरीज में या पेल्विक फ्लोरा में वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, और उसी एंडोमेट्रियल लाइनिंग के पैचेस वहां पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, और वहां पे वो क्या करते हैं? टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? वहां पे पेशेंट को इन्फ्लेमेशन होता है, और उसकी वजह से पेशेंट को पेन भी स्टार्ट होता है। तो ये अपान वायु का विमार्ग गमन होने की वजह से वो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो रिवर्स जाता है, जिसको हम रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, जो कि उदावरता योनि व्यापद में देखने को मिलता है। तो उसको हम एज अ एंडोमेट्रियोसिस के साथ मिमिक कर सकते हैं। पेशेंट को क्रोनिक पेल्विक पेन होता है, वो क्यों? कि पेशेंट को अपानवात की विकृति होती है, वात का प्रकोप होता है, उसकी वजह से पेन होता है। क्योंकि हम बोलते हैं कि पेन जो है वो वात की वजह से ही होता है, तो इसीलिए वात का प्रकोप है तो मतलब पेन पेशेंट को होने वाला है। पित्त और वात की दृष्टि उसमें होती है।
पित्त के साथ साथ रक्त भी होता है, तो इसीलिए इन्फ्लेमेशन होता है और पेन होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है आर्तवदुष्टि होने की वजह से, मतलब जो आर्तवदुष्टि होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सिम्टम्स हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस देखने को मिलता है। तो यही हमारा अग्निमांद्य होने की वजह से पेशेंट की रस, अग्निमांद्य है तो आहार से रस धातु अच्छा नहीं बनेगा, रस अगर अच्छा नहीं बनता है तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है, मतलब रज जो है वो अच्छा नहीं बनता है और रज की विकृति हमें देखने को मिलती है। दूसरा, सिस्टिक ग्रोथ या एडेजन्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें कफ की इन्वॉल्वमेंट होती है या ग्रंथि फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, आम एक्यूमुलेशन होता है, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। और कभी कभी पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस के इनफर्टिलिटी भी लेके आते हैं। तो ये सब ऑब्स्ट्रक होने की वजह से वंध्यत्व, ये एक सिम्टम्स हमें उसमें देखने को मिलता है। इस तरीके से बेसिकली एंडोमेट्रियम हमें अलग अलग कंडीशन में पेशेंट हमारे पास सिम्टम लेके आता है। तो ये क्यों होता है, कि इसका रूट ऑफ क्या कॉज क्या है? अगर हम देखेंगे पेशेंट की आप हिस्ट्री लेते हो, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो केस टेकिंग है, केस टेकिंग में हमें आपको ऐसे कुछ पॉइंट पेशेंट को पूछने चाहिए जिससे कि आप उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है वो निकाल सकते हो। तो पॉजिटिव फैक्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसका आहार। आहार मतलब मॉर्निंग से, जब आपके पास पेशेंट ऐसे आते हैं तो मॉर्निंग से रात को सोते समय तक उसका डाइट क्या है, किस तरीके से वो खाना लेता है, ये आपको पहले पूछना है। क्योंकि अगर इस डाइट में बहुत बार विरुद्ध अन्न है, या गुरु स्निग्ध ज्यादा, अभिसंधि आहार ज्यादा ले रहा है पेशेंट, या अतिरुक्ष या कटु आहार ले रहा है, तो वो क्या करेगा, एक इसका हेतु बनेगा। तो आपको पहले वो कॉजेज जो है वो भी निकालने पड़ते हैं। आइडियली जो विरुद्ध आहार लेना, अभिसंधि आहार लेना, ये सब उसके एंडोमेट्रियोसिस के कॉजेस होते हैं। विहार में आप देखोगे तो दिवा स्वाप है, रात्रि जागरण ज्यादा होता है, मतलब जिस कारण से वात बढ़ता है, ऐसे सब कारण हमें देखने चाहिए। तो रात्रि जागरण की वजह से, या स्ट्रेस फैक्टर है, या सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, वेगों का धारण कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वाता इम्बैलेंस होता है, अग्नि जो है मंद हो जाती है, और उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। मानसिक हेतु मतलब मेंटल स्ट्रेस कुछ है, एंजाइटी है, तो ये भी वात पित्त को अफेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इमोशनल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पॉजिटिव फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव फैक्टर निकालने के लिए हमें केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। केस टेकिंग को भूलना नहीं है। पेशेंट सिर्फ आपके पास आया, सिम्टम के अकॉर्डिंग आप मेडिकेशन देते हैं, तो आप उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, ये ध्यान में रखो। इसीलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव फैक्टर निकालना। और पॉजिटिव फैक्टर निकालने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए आहारज क्या होते हेतु हो सकते हैं, विहारज क्या हेतु हो सकते हैं, शारीरिक हेतु क्या हो सकते हैं। तो इसमें अगर ज्यादा पेशेंट का अति व्यवहार हो रहा है, या सेक्सुअल अर्ज सप्रेस हो रहा है, या कुछ ओवर एक्सर्शन हो रहा है, तो ये भी वात प्रकोपक होने वाले कारण है, जिससे विमार्ग गमन होके आर्तव का फ्लो जो है वो विमार्ग गमन रेट्रोग्रेड हो सकता है, और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कंजेनाइटल कुछ एनामली इस पेशेंट को है, या बीजो दोष कुछ है, या आर्तव दोष कुछ है, तो ये भी हमें देखना है। अगर पेशेंट को डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट शुरू में होती है, तो ऐसे पेशेंट भी आगे जाके, डिस्मेनोरिया मतलब फिर से वही है, अपान वायु की विकृति रहती है, तो ऐसे पेशेंट आगे जाके, अगर रिकरेंट डिस्मेनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, तो आगे जाके एंडोमेट्रियोसिस या एडेनोमायोसिस में भी लैंड अप हो सकते हैं। तो इसीलिए हेतु सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी हिस्ट्री लेना हमें आना चाहिए। वो जितनी आप प्रॉपर तरीके से लोगे, उतना पेशेंट का डायग्नोसिस अच्छी तरीके से पता चलता है। सिम्टम्स में आप देखोगे तो डिस्मेनोरिया, फटीग, लो एनर्जी रहती है, डिजीनेस रहता है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक पेन किसी पेशेंट को रहते हैं, क्रोनिक पेन पेशेंट को, किसी किसी पेशेंट को कंटिन्यूअसली पेन रहता है, मतलब पीरियड के टाइम भी नहीं, पीरियड छोड़ के भी हमेशा उनको वहां पे यूटेरस की जगह पे हेवीनेस फील होना, या वहां पे पेन होना होता है, लोअर एब्डोमेन पे पेन होता है, इरेगुलर ब्लीडिंग कभी कभी होता है, कभी कभी किसी को एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लोटिंग होती है, नौशिया, वोमिटिंग, डिस्पेन्यूरिया, कॉन्स्टिपेशन होता है, अर्जेंसी यूरिन को होती है, या इनफर्टिलिटी, ऐसे कंप्लेंट्स लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो इसकी संप्राप्ति हम किस तरीके से लगा सकते हैं? संप्राप्ति लगाने के लिए मिथ्या आहार विहार कुछ पेशेंट का है क्या, पहले वो हमें रूल आउट करना है। उसके अकॉर्डिंग उनका कुछ विरुद्ध आहार पेशेंट ले रहा है क्या, ओवर एक्सर्शन तो नहीं हो रहा है,
वेगों का धारण तो नहीं कर रहा है। आजकल हम देखते हैं कि लेडीज बहुत ऑफिस जो जाती है, वहां का बाथरूम या वहां का टॉयलेट अच्छा ना होने की वजह से वो दिन दिन भर वो यूरिन नहीं जाती है, मतलब यूरिनेशन की इच्छा होती है, लेकिन ड्यू टू कॉमन टॉयलेट या अनहाइजीनिक टॉयलेट वो जाती नहीं है। तो वो नेचुरली सप्रेशन को क्या, आर्च को क्या करती है, सप्रेस करती है। तो ऐसे भी करती है। तो ये पेशेंट को हमें पॉइंट पूछना है कि अगर वो वर्किंग है तो उसको जो नेचुरल अर्ज आते हैं उसको वो कंडक्ट करती है कि नहीं, या उसका सप्रेशन हो रहा है। अगर उसका सप्रेशन हो रहा है तो ये भी अपान वायु की विकृति है, और ये भी आगे जाके पेशेंट को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में लैंड अप कर सकती है। दोषा की इन्वॉल्वमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात वाता होती है, पित्त होता है, और पित्त के साथ रक्त भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और कफ आम की कंडीशन की वजह से वो डिपेंड्स ऑन पेशेंट किस तरीके से आता है, मतलब प्रकृति के अकॉर्डिंग फिर वो आपको अनुबंध कफ का रहता है, लेकिन उसकी सीवेरिटी कितनी है वो आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग हर एक पेशेंट में अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन त्रिदोषज इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है, और एक रक्त भी इसके साथ दृश्य में मिक्स होता हुआ हमें नजर आता है, और उसकी वजह से आर्तव स्रोतस रक्त व स्रोतस दुष्ट होते हैं, और इन्फ्लेमेशन जो होता है वो देखने को मिलता है। स्रोतो दृष्टि में अति प्रवृत्ति, विमार्ग गमन, संग, सीरा ग्रंथि, ये सब पॉइंट्स हमें उस पेशेंट में देखने को मिलते हैं। मतलब पेशेंट को कभी कभी एक्सेसिव फ्लो होता है या एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, मेंस्ट्रुअल हेवी फ्लो हो जाता है। कभी कभी विमार्ग गमन, विमार्ग गमन का ही मेन साइन है एंडोमेट्रियोसिस। विमार्ग गमन होना मतलब एक्सेसिव फ्लो जो नीचे की तरफ से आना चाहिए ऊपर की तरफ गया, रिवर्स फ्लो हो गया, तो उसको विमार्ग गमन ही बोलते हैं। संग या ऑब्स्ट्रक्शन होना, वहां पे सीरा ग्रंथि मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन होना, ग्रोथ होना, ये सब स्रोतोदुष्टि की ही लक्षण है। इसमें नेचुरली हम हमारे जैसे हमें समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से उसकी संप्राप्ति लगा सकते हैं। ज्यादा जो पॉजिटिव फैक्टर है, मतलब मिथ्या आहार विहार, स्ट्रेस या हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से पेशेंट को अग्निमांद्य होता है। अग्निमांद्य से आम उत्पत्ति होती है। आम उत्पत्ति होने की वजह से स्रोतोदुष्टि होती है। ये स्रोतोदुष्टि क्या करती है, तो त्रिदोष दृष्टि स्रोतोरोध तैयार करती है। आर्तव स्रोतों में रोध होने की वजह से जो आर्तव है उसका रिवर्स फ्लो मतलब प्रतिलोम गति से जाता है, विमार्ग गमन हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज है वो अलग अलग जगह पे इम्प्लांट होना शुरू हो जाते हैं, और वहां पे उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसके जहां पे वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, और उसकी वजह से वहां पे ग्रंथि फॉर्मेशन या सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, और उसी को हम एंडोमेट्रियोसिस ऐसा बोलते हैं। तो अभी एंडोमेट्रियोसिस का एक छोटा सा वीडियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से देखने को मिलता है। हम्म। तो इस तरीके से उसके जो लीजन्स होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो अलग अलग जगह पे वो लीजन जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी जो डिग्री होती है वो पता चलती है वो कितनी सीवियर जगह पे गया है। तो इसको ट्रीटमेंट करते टाइम हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि करेक्शन ऑफ अग्नि, मतलब हम बोलते हैं कि रोगाः सर्वेपि मंदाग्नि। अग्नि कौन सा ही रोग जो होता है, व्याधि की शुरुआत हम अग्नि से मानते हैं, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अग्नि करेक्शन करना है। तो अग्नि करेक्शन करने के लिए हम दीपन पाचन ड्रग्स तो यूज करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जो नेचुरल अग्नि को करेक्ट कौन करने वाला है, तो एक तो वो डाइट है, और दूसरा एक्सरसाइज है। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो होते हैं तो इसमें बेसिकली एक तो एंडोमेट्रियोसिस हुआ है, और दूसरा जो है कि हम जो रोज चीजें खाने वाली है, जो रोज हमारे मुंह से जाने वाला है, वो भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक जगह से क्या होता है, एक्युमुलेट हुए दोष हमें निकालना है, और दूसरी जगह क्या है कि जो प्रोडक्शन डेली का होने वाला है उसको भी करेक्ट करके अंदर भेजना है। लेकिन अगर ऐसा है कि पेशेंट प्रॉपर मतलब बहुत हेवी तीखा खाना खा रहा है, स्पाइसी खाना खा रहा है, और अवेरी खा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है,
तो इससे वो क्या करेगा, हेतु का सेवन करेगा और दूसरी जगह पे हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात पेशेंट को यही समझानी है कि इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आपको डाइट और एक्सरसाइज, ये पहले करना है। मैं इसको 50% वेटेज देती हूँ, क्योंकि जब तक पेशेंट ये 50% नहीं करेगा तब तक आपके मेडिकेशन और पंचकर्मा इसको फायदा नहीं करेंगे। इसीलिए पेशेंट टूवर्ड पेशेंट जो आहार और व्यायाम है ये पहले उनसे करवा के लेना है। ये प्रॉपर तरीके से आप शुरू करोगे तो ही आपके मेडिकेशन और आपके पंचकर्मा उनको हेल्प करने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पेशेंट को प्रॉपरली बायोलॉजिकल क्लॉक उसका एक्सप्लेन करो। उसको जो भी खाना लेना है, मतलब डाइट लेना है, वो जो जैसे हम बोलते हैं कि मॉर्निंग का खाना जो है, सॉरी, मॉर्निंग टाइम में पहले वर्कआउट उनको बोलना है। वर्कआउट में भी सबसे इम्पोर्टेंट टू द स्पेसिफिक, गीता, टू द स्पेसिफिक वर्कआउट उनको बोलना है। उसमें भी हमें क्या करना है, तो एब्डोमिनल वर्कआउट ज्यादा बोलना है, क्योंकि हमें वहां का ब्लड फ्लो बढ़ाना है। हम वो देखते हैं कि कौन सी भी अगर स्वेलिंग है या कौन सा भी इंफेक्शन है, तो वहां पे अगर ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वहां का इन्फ्लेमेशन जो है वो जल्दी रिकवर होता है। तो अगर हमें वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ाना है, तो ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन किस चीज से बढ़ेगा, तो आपको उसकी वर्कआउट करने से वो बढ़ेगा। तो इसीलिए पेशेंट को पहले हमें वर्कआउट करने को बोलना है। जितना पेशेंट को आप वर्कआउट अच्छी तरीके से पेशेंट करेगा उतने उनको रिजल्ट आएंगे। तो टू द स्पेसिफिक वर्कआउट मतलब एब्डोमिनल वर्कआउट उनको बोलना है। एब्डोमिनल वर्कआउट में भी पवन मुक्तासन, धनुरासन, भुजंगासन, सुपाइन और प्रोन पोजीशन वाले जो भी वर्कआउट है ये उनको आप बोल सकते हो। क्योंकि ये वर्कआउट करने से क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी जो है, मतलब एब्डोमिनल पार्ट है, उसका फ्लेक्जन और एक्सटेंशन हो जाता है। क्योंकि आप पवन मुक्तासन देखोगे तो उसको एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर आता है, आप धनुरासन देखेंगे तो भी उसका एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर आता है, आप भुजंगासन देखोगे तो भी उसका एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर आता है। इसीलिए सुपाइन प्रोन पोजीशन वाले जो भी वर्कआउट है वो पेशेंट को आप पहले बोल दो। वो करने के बाद जब पेशेंट को भूख लगती है तो उसको डाइट प्रॉपर तरीके से देना है। अभी डाइट देना है मतलब क्या, तो बेसिकली जो भी हम खाना दे रहे हैं वो प्रॉपर टाइम पे उनको खाने को बोलो। अवेड़ी खाना खाना भी दोष बढ़ाता है। तो सुबह मॉर्निंग का खाना, ब्रेकफास्ट और लंच को आप अगर एक साथ करने को बोलते हो, ब्रंच करने को बोलते हो पेशेंट को, ब्रेकफास्ट अलग से पेशेंट खाता है तो ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन ही खाएगा, पोहा उपमा ही खाएगा, तो ये क्या करेंगे, रक्त दुष्टि बढ़ाएंगे, पित्त की दुष्टि बढ़ाएंगे। तो पित्त और रक्त दुष्टि ना बढ़े ऐसा डाइट उनको नहीं देना है। तो पेशेंट को डायरेक्टली आप प्रॉपर मील दे दो। तो प्रॉपर मील में उनको रोटी सब्जी दाल ऐसा आप प्रॉपरली मॉर्निंग के टाइम में उनको खाने को बोलो। 9 से 11 के बीच में अगर पेशेंट ये खाता है तो बहुत अच्छा, सुबह मॉर्निंग के टाइम में तो ब्रेकफास्ट अपने आप स्किप हो जाता है और प्रॉपर खाना सुबह के टाइम में जाता है। उसके बाद अगर उसको 12 to 6 के बीच में भूख लगती है तो उसमें दाल चावल बोल दो या ड्राई फ्रूट्स बोल दो या लाया मुरमुरा जो रहते हैं वो उनको बोल सकते हो। या अगर कुछ फ्रूट्स है, मतलब जिसमें सीजनल फ्रूट्स है, अनार है, पोमोग्रेनेट है, फिग है, ऐसे आप उनको बोल सकते हो। तो वो दोपहर के टाइम में बोल सकते हो। और रात का खाना फिर 7 to 8 के बीच में उनको खाना है। और उसी में भी फुल मील उनको होना चाहिए, मतलब रोटी सब्जी दाल चावल 2 चम्मच घी, ऐसा खाना उनको एडवाइस करना है। तो इस तरीके से आप डाइट का करेक्शन करोगे, एक्सरसाइज का करेक्शन करोगे और उसके साथ अगर आप मेडिकेशन देते हो तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट को देते हैं। मेडिकेशन में आम पाचन और करेक्शन, अग्नि का करेक्शन करने के लिए दीपन पाचन ड्रग्स यूज करने हैं। तो उसमें पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको अभी ये डिसाइड करना है कि उसको संजीवनी वटी देना है, अग्नितुंडी वटी देना है, शंखवटी देना है, चित्रकादी वटी देना है या आम पाचक वटी देना है। लेकिन जो पेशेंट का डाइजेशन अच्छा करेगी तो वैसे आप मेडिकेशन उनको दे सकते हो। पेशेंट को अगर ज्यादा पेन रहेगा और अग्नि भी कम रहेगा तो आप उसमें आम पाचक वटी या शंखवटी पेशेंट को दे सकते हो। उसके साथ साथ पेशेंट को कंपलसरी एक वातानुलोमक कुछ तो भी आपको देना है। तो उसमें आप अभिपत्तिकर वटी भी दे सकते हो या गंधर्व हरित की भी पेशेंट को कंटिन्यूअसली देते हो तो उसका अच्छा फायदा होता है। क्योंकि वात का अनुलोमन मतलब अपान अपना एक फोकस है, अग्नि अपना एक फोकस है। तो इसके अकॉर्डिंग आप शुरू में पेशेंट को हमें थोड़ा सा प्रॉपरली जो जो दोषों की इन्वॉल्वमेंट दिखती है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वातानुलोमन आप अभिपत्तिकर
वो चूर्ण अभिपत्तिकर चूर्णवटी या अभिपत्तिकर सॉरी गंधर्व हरित की आप पेशेंट को दे सकते हो। उसके बाद कंटिन्यूअसली मृदु विरेचन उसको देना है। तो मृदु विरेचन देने के लिए आप बेसिकली पेशेंट को डेली में गंधर्व हरित के देते हैं तो भी चलेगा, या वंस इन अ वीक आप पेशेंट को एरंड तेल दे दो या त्रिवृत्त लेह दे दो। ऐसा 10 मतलब संडे टू संडे अगर आप पेशेंट को देते हो मृदु विरेचन के तौर पे तो भी चलेगा। मतलब रात को सोते समय कैस्टर ऑयल 10 ml या 15 ml देना है, तो उसको नेक्स्ट डे थोड़ा सा अनुलोमन अच्छी तरीके से हो जाएगा, वात का अनुलोमन अच्छा हो जाएगा, रेचन मतलब पित्त और रक्त की दृष्टि भी चली जाएगी, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और लोकली लगाने पे उसको एक्सटर्नल ऑयल मतलब वहां पे वात का शमन हो जाए, इसलिए आप लोकली ऑयल मतलब बला तेल, धनवंतर तेल या अभ्यंग तील तेल दे सकते हो, या चंदन बला का तेल से दे सकते हो, या शतावरी का तेल भी दे सकते हो, जिसमें आपका आपका टारगेट यही होना चाहिए वात का शमन, पित्त और रक्त, ये तीन चीजें आपको ध्यान में ही रखना है। उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देना है। ऐसे पेशेंट में आप बस्ती की ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। बस्ती में एरंड मूलादि का निरूह बस्ती या दशमूल काढ़े का निरूह बस्ती, या अनुवासन बस्ती में सहचर तेल दशमूल तेल का अनुवासन बस्ती भी आप पेशेंट को दे सकते हो। योग बस्ती अगर इसमें करते हो आप तो भी अच्छा फायदा होगा। और उसके साथ साथ रक्त स्त्राव रोधक मतलब रक्त का जो ये है रक्त प्रसाधन भी हमें देना है। और उसके साथ साथ पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रहा है, पेशेंट कौन सी कंडीशन में आपके साथ पास आता है उसके अकॉर्डिंग, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, नॉन साइक्लिक ब्लीडिंग है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको रक्तस्राव रोधक औषध भी देनी पड़ती है, जिसमें आप रक्त स्तंभक दे सकते हो, कामदुदा दे सकते हो, पुष्यानुवटी दे सकते हो, लोद्रासव दे सकते हो, बोलबद्ध रस दे सकते हो। तो पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना है। तो मेन पहले और उसके बाद मतलब पेशेंट पहले आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट वीक में आपको उसको वात का अनुलोमन करना है, अग्नि का वर्धन करना है, और उसको मृदु विरेचन देना है, और उसके साथ साथ लोकली वहां पे लगाने के लिए स्नेहन देना है। ये आपको करना है। उसके बाद उसको जो वहां के पैचेस है वो निकालने के लिए ग्रंथिहर लेखन चिकित्सा बाद में आपको देनी है। तो ग्रंथिहर लेखन चिकित्सा में आप वरुणादि काढ़ा दे सकते हो, कांचनार गुग्गू दे सकते हो, या शिगरू का जो पाउडर आता है वो दे सकते हो, या अपना ये भी दे सकते हो, मांसपाचक या मेदोपाचक भी पेशेंट को वहां पे दे सकते हो, या कांचन और गुड़ भी आप दे सकते हो। अगर पेशेंट को पेन वहां पे ज्यादा है तो दशमूला रिष्ट है, अशोका रिष्ट है, महारासनादि कषाय है, कुमारी आसव है, या आप उनको दे सकते हो। हिंगवाष्टक वटी ये एडिशनल फॉर्मुलेशन है जो हम मतलब यूज करते हैं, तो उसमें हिंगवाष्टक वटी एक अच्छा काम करती है। अभिपत्तिकर वटी है, त्रिवृत्त लेह जैसे मैंने बोला कि मृदु विरेचन के लिए आप दे सकते हो। सहचरादि ऑयल जो है वो लोकल एप्लीकेशन के लिए दे सकते हो। और अनुवासन एंड निरूह बस्ती है, ये योग बस्ती आप पेशेंट में कर सकते हो। उसके साथ साथ पेशेंट को पथ्य जैसे मैंने बोला पहले उनको डाइट के ऊपर आपको शिफ्ट करना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो डाइट है, लाइट डाइट, उसमें भी मूंग दाल खाने को, घी ज्यादा खाने को बोलना है। वो गुआर फैमिली के सब वेजिटेबल जो है मतलब बॉटल गुआर है, ऐश गुआर है, बिटर गुआर है, पंपकिन है, ये सब उनको खाने को बोलो। सीजनल फ्रूट्स उनको खाने को बोलो। स्पाइसेस में उनको जो टर्मरिक है वो चलेगी, जिंजर है वो थोड़ा चलेगा, ये आप दे सकते हो उनको। अपत्य में टोटली जो स्टेल फूड है वो कंपलसरी उनको अवॉइड करना है। कोल्ड फूड नहीं खाना है, फ्रीज से बनाया हुआ कुछ फूड नहीं खाना है, फ्राइड फूड नहीं खाना है, ये उनको मतलब अवॉइड करने को बोलना है। जो वाइट चीजें हैं मतलब जिससे क्लेद ज्यादा बनता है, ऐसे मतलब रवा है या मैदा है, बेकरी प्रोडक्ट है, ये सब टोटली उनको अवॉइड करने को बोलना है। और टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो ऐसे एक्सेस अगर खा रहे हैं तो वो भी उनको कम करने को बोलना है। डेली रूटीन में अर्ली मॉर्निंग वेकअप उनको प्रॉपरली स्नेहन स्वेदन अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है। मतलब स्नेहन मतलब लोकली एब्डोमेन को मसाज लगाना है और गर्म पानी से नहाना है, ये उनको बोलना है। एक्सरसाइज में मैंने जैसे बोला कि भुजंगासन है, पवन मुक्तासन, धनुरासन, ऐसे आसन। और अगर प्राणायाम उसके साथ साथ करते हैं स्ट्रेस रिलीव होने के लिए तो वो भी अच्छा काम इसमें करता है। एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज उनको अवॉइड करने को बोलना है, जिससे कि अपान की विकृति हो, जिससे कि अपान विमार्गमन हो, ऐसे वर्कआउट उनको नहीं बोलना है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कंपलसरी उनको वर्कआउट या हेवी एक्सर्शन अवॉइड करने को बोलना है।
क्योंकि ये बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस का मेन रीजन होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेशेंट बहुत हेवी वर्कलोड लेके काम करता है, या ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, या ज्यादा एक्सर्शन अगर उनका होता है, या कुछ पेशेंट ऐसे भी है मेंसेस है तो भी उनकी जिम करते हैं, मेंसेस है तो भी वॉकिंग करते हैं। तो अगर ऐसे चालू है तो वो हेवी वर्कआउट उनको इंडोमेट्रियोसिस क्रिएट करता है, तो वो उनको टोटली अवॉइड करने को बोलना है। पहला मेन टारगेट यही है कि उनको ऋतुचर्या जो बोली है वो टोटली फॉलो करने को बोलना है। वो जितना फॉलो करे, मतलब अभी आपको उनको कस्टमाइज करके देना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे होता है कि मेंस्ट्रुएशन है लेकिन फिर भी डेली का वर्क तो करना ही पड़ता है, लेकिन उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाओगे, उस टाइम कितना लोड लेना है, कितना लोड आप आगे डाल सकते हो, जो काम जितना हो सके उतना आगे डाल सकते हो, उतना वो पोस्टपोन करना है। या पहले आपको पता है पीरियड आने वाले हैं तो प्रीपोन करके जो मेन काम है, जो हेवी वाला काम है, या जो करना इम्पोर्टेंट ही है, वो उनको पहले प्लान करने को बोलना है। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम में वो जितना रिलैक्स रहेंगे उतना उनको अच्छा रहेगा, उतना उनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमें पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है। दूसरा, माइंड बॉडी बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन होता है, योग निद्रा प्राणायाम, ये उनको डेली करने को बोलना है। और स्क्रीन टाइम, रात्रि जागरण जो है वो हमें उनको कम करने को बोलना है। अभी एक केस है, ये देखेंगे, ये एक एंडोमेट्रियोसिस की ही केस है। उनका 2024 में मेरे पास आई थी। एज उसका 27 ईयर्स है, 46 उसका वेट था, मैरिड, 1.5 साल पहले मैरिड थी, शिफ्ट ड्यूटी करती थी, डॉक्टर थी लेकिन कैन आई इंटरप्ट यू मैम? हाँ ये बोलो। केस स्टार्ट करने से पहले हम हाँ, कुछ चीजें डिक्लेयर करते हैं ग्रुप में। यस मैम, मेरी यस, आवाज क्लियर है ना सबको? यस मैम, यस। मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। तो जैसे कि मैम ने एंडोमेट्रियोसिस मतलब इतना जो हमें डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड जो केस हमें लगती है, जिसका नाम सुन के ही हमें लगता है कि अरे इसमें क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसमें, है ना? तो मैम ने कितने आसानी से इसको समझाया, उसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, कौन सा पंचकर्म करना है। और आप अगर देखेंगे कि मेडिसिन जो मैम ने चुने हैं, ये बहुत सर्वसाधारण मेडिसिन है जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ओनली द थिंग इज दैट कि हमें अभी उस मेडिसिन के पीछे क्या लॉजिक लगाना है, वो मैम ने बहुत आसानी से हमें समझा दिया। डू यू अग्री एवरी वन ऑफ यू? यस मैम। या सो आप में से बहुत यस मैम। जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्त्री वेदा जो 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री रोग विज्ञान है, इस कोर्स से आप लोग आप में से बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग जुड़े नहीं हैं, मैं उनसे उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये हमारा 40 डेज मतलब 3 मंथ्स का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री रोग विज्ञान है। और जो 80 ए मतलब आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड लेवल 3 विच कम्स अंडर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली। ओके, इसके अंडर ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है, सर्टिफिकेट कोर्स आता है। इसके अंडर ये कोर्स हमारा रजिस्टर है। तो अगर आप हमसे जुड़कर अगर हमारा सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो आपको एक प्रॉपर सर्टिफाइड डिग्री भी मिलने वाली है। और नॉलेज तो आपको, जैसे आज का लेक्चर फ्री लेक्चर था, इसमें आपको मिला है, उससे भी कई गुना ज्यादा नॉलेज आपको हमारे कोर्स में मिलेगी। और हम इस कोर्स मैम में क्या क्या लेने वाले हैं उसका मैं पीडीएफ आपको शेयर करती हूँ। आप में से कई जनों ने पीडीएफ देखा भी होगा। इसमें हम फ्रॉम बेसिक क्लिनिकल जो हमारा अप्लाइड एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, नॉट द बुक में से हमने पढ़ा है, कॉलेज ड्यूरिंग कॉलेज डेज भी हमने सीखा है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके क्लिनिकल एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल फिजियोलॉजी और सारे डिसीजेस मतलब पीसीओडी से लेके गर्भिणी व्याधि से लेकर फाइब्रॉइड, और जो आज हमने एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रोसिस जो देखे हैं। सो इट इज फ्रॉम प्री प्यूबर्टी एज टिल मेनोपॉज, और मेनोपॉज के बाद वाले भी सारे डिसीजेस, सारे डिसऑर्डर्स, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम कवर करने वाले हैं। वी विल कोरिलेट इट विद मॉडर्न पर्सपेक्टिव, बट
each and every disease we will see the treatment only through Ayurvedic approach. You will get the documents also, you will get the जैसे कि अगर हम कोई स्थानिक चिकित्सा या कोई कर्म करते हैं उस पेशेंट का, सो व्हाट विल बी द कंसेंट फॉर्म, व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स, पेशेंट फॉर्म रहता है, थेरेपिस्ट फॉर्म रहता है, बिफोर आफ्टर जो पेशेंट को फॉलो करना है पथ्य फॉर्म रहता है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट स्टडी मटेरियल भी आपको मिलने वाला है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, डोंट मिस दिस चांस बिकॉज दिस इज अ होलसम प्रोग्राम। अगर आपको आगे जाकर गायनेक में प्रैक्टिस करनी है आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और इसके बाद हम एक ट्रेनिंग भी लेने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर निर्विकार हॉस्पिटल में आकर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको यहाँ पर आने के बाद एक एमसीक्यू एग्जाम होगा, जहाँ पे एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, जो सिंपल एग्जाम रहेगी आपके लिए। क्योंकि सिंपल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 3 महीने में हम आपके ब्रेन में सारी चीजें इतनी डीपली अदर करेंगे कि आपके लिए एग्जाम बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है, टू पास आउट। और ऑफलाइन ट्रेनिंग एग्जाम के बाद तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपको कुछ इसके रिलेटेड डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो और हम इस केस को कंटिन्यू करेंगे। मैम एक डाउट था। यस सर, प्लीज आस्क। मैम मैंने इसके महीने मैम का मैं 3 मंथ का मैं जो है ना कोर्स पूरा किया था। हेलो। सारिका मैम, विल यू आंसर द क्वेरीज? हाँ हाँ, यस मैम। हेलो। हाँ सर, पूछो। मॅडम मी याच्या अगोदर आहे ना आपले एक लेक्चर केले होते, 3 महिन्याचे लेक्चर केले होते। हाँ आता मॅडमनं म्हटली की तुम्ही 3 महिने लेक्चर केल्यानंतर आपल्याला काही एमसीक्यूचे एक्झाम म्हणले होते आणि सर्टिफिकेट म्हणले होते, पण हे हाँ काय मला इश्यू झाले नाही। सर, तुम्ही ऑफलाईन कोर्सला आले होते का इथे? ऑफलाईनला तर मला सांगितलेच नाही मॅडम, मी त्यावेळेस लेक्चर नाही पूर्ण सर, केले। कोणत्या कोर्सला, कोणत्या बॅचला आले होते तुम्ही? मी याच्या अगोदर म्हणजे बॅच आता जस्ट रिसेंट मागच्या ऑक्टोबर मध्ये झाली त्या बॅचला आले होते का त्याच्या अगोदरच्या हा बॅचला? नाही ऑक्टोबरच्या बॅच मॅडम। हा, मग ऑक्टोबरच्या बॅचला सर तुम्ही असाल तर आपण ऑफलाईन बॅचला जवळजवळ मला वाटतं 180 ऍडमिशन होते, तर 180 मधली जवळजवळ 160 लोक आपल्या इथे आली होती एक्झाम साठी। मग त्यावेळेस तुम्ही ग्रुपवर जॉईन नव्हते का आपल्या? ग्रुपवर होतो मॅडम, मग मग काही तुम्ही दिलं नाही मला। ऑफलाईन बॅचला का नाही आले सर? कारण की ऑफलाईन बॅचला आले ना की इथे प्रॉपरली आपण एक्झाम देतो, एक्झाम दिले की आपल्याला अटॅपचं सर्टिफिकेशन मिळतं आणि ते आम्ही इथेच देतो विथ फ्रेम करून प्रॉपरली। अच्छा यावेळेस जमते का मॅडम द्यायला नुसतं म्हणजे ओनली यावेळेस याच्यासाठी? तुम्हाला आता त्याला परत मग हे करायला लागेल, कारण की आपण काय करतो, ज्यावेळेस तुमची बॅच होते, बॅच झाल्यानंतर, बॅच मी हिंदीत सांगते म्हणजे बाकीच्यांनाही कळेल, जिस टाइम आपकी हाँ, बैच होती है तो बैच होने के बाद हम मतलब पूरा 3 महीने का जब आपका कोर्स हो जाता है तो हम एग्जाम्स मतलब बैचेस रखते हैं आगे अकॉर्डिंग टू एडमिशन, जितने एडमिशन है उतने अकॉर्डिंग बैचेस रहते हैं। अभी लास्ट टाइम 6 बैचेस थे, तो हम एक 30-40 एडमिशन उस टाइम ले रहे थे। तो उस टाइम आपके एडमिशन होते हैं, जो टाइम आपको अलॉट किया जाता है उस टाइम आपको यहाँ पे आना होता है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना होता है, एक एग्जाम होती है सिंपल एमसीक्यू टाइप, वो आपको देनी होती है, और फिर उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेशन मिलता है। जब वो बैच पूरी होती है तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें आगे ऊपर मतलब आरएवी को, अटैप को ये देना पड़ता है, तो वो उनके पास सबमिट होती है। अगर आपको फिर से ये एग्जाम देनी है तो आपको इस बैच में जो भी रिपीटर्स की फी है वो दे के सर आपको इसमें इनरोल होना पड़ेगा। वो रिपीटर्स की फी क्या है वो मैम आपको बाद में बताएगी, मंजू मैम से आप कांटेक्ट कर लो, आपको मैम डिटेल्स देगी सब। हाँ, तो आप ये ओके एग्जाम थैंक दे यू सो सकते मच। हैं। हाँ, आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको ओके अटैक का थैंक यू ये सो भी मच। मिल सकता है। यस सर। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। मुझे और किसी को कुछ क्वेश्चन है या हम आगे जाएंगे? Ma'am, I'm Dr. Kavita here. ओके। Ma'am, how to join this course and what will be the fee structure, ma'am? हम्म ओके, इसको बेसिकली अभी ये कोर्स जो है, मंजू मैम का मैं कांटेक्ट नंबर यहाँ पे शेयर करती हूँ, तो मैम आपको पूरी डिटेल्स भेज देंगी। ये जो कोर्स है ये 3 मंथ्स का अपना कोर्स रहता है, इसमें 40 लेक्चर्स रहते हैं। 40 लेक्चर्स जो है जैसे कि वो ऑनलाइन है, और 3 डेज यहाँ पे आपको ऑफलाइन आना होता है। तो इसको फी जो है टोटल अभी 10,000 रुपीज फी है इसको।
और ये टोटल Noted, ma'am. Thank you. हाँ 3 मंथ्स का चलता है। ओके। मुझे लगता है हम आगे जाएंगे। ये जो केस है वो मैम हाँ हेलो। गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलो। मैं डॉक्टर अंशु बोल रही हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन था कि ये कोर्स केवल बीएमएस वाले ही कर सकते हैं? यस यस। एस ओके मैम। आपका क्या हुआ अदर है? स्टूडेंट नहीं? एक्चुअली मैम मेरा बीएचयू से है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अच्छा। मेरा कोर्स तो स्पेसिफिक कोर्स बीएनवाईएस है, बैचलर इन अच्छा। नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस है। बट साथ हम्म। में हमने आयुर्वेदा भी पढ़ा है, और अच्छा। आयुर्वेदा के सारे ओपीडीज आईपीडीज में 6 मंथ की इंटर्नशिप भी करी है। ओके। और वे शुरू से आयुर्वेदा पढ़ा, तभी मतलब नॉलेज भी है, इंटरेस्ट भी है, तो ऐसा प्रोसेस नहीं से नहीं, ये करते हैं। एक्चुअली बीएमएस के लिए ही मैम, बेसिक क्राइटेरिया इसका बीएमएस ओके। कंप्लीट होना चाहिए। यस। अच्छा अच्छा, ओके मैम, नो प्रॉब्लम, थैंक ओके यू। ओके। तो ये जो केस है हम देखेंगे। इसका एज जो है 27 ईयर्स एज है। वेट उसका 46 था। मैरिड 1.5 ईयर। शिफ्टिंग ड्यूटी थी, मॉर्निंग इवनिंग नाइट उसको करना पड़ता था। पर्सनल हिस्ट्री में एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती थी। इरेगुलर टाइमिंग ऑफ डाइट था ड्यू टू शिफ्ट ड्यूटीज। दिवस स्वाप था, मतलब नाइट शिफ्ट रही तो इवनिंग में मॉर्निंग के टाइम में सोना था। तो ये सब उसका था। थायराइड की टाइफाइड की हिस्ट्री थी। चिकन पॉक्स बचपन में उसको हुआ था। बेसिक एक था मल प्रवृत्ति में कॉन्स्टिपेशन, ये मेन उसकी कंप्लेंट थी, कॉन्स्टिपेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे उसकी रेगुलर थी, फ्लो भी प्रॉपर 4 डेज 4 डेज उसको फ्लो होता था। रेगुलर पीरियड थे, लेकिन पेनफुल इंटरकोर्स था, कॉन्स्टिपेशन था, और कंसीव के लिए ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पे आप उसका रिपोर्ट देखेंगे, इसमें राइट ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस ऐसा था। उसको सिस्टिक लीजन था 3.8 इंटू 3 सेंटीमीटर का, और वॉल्यूम 18.3 सेंटीमीटर था। उसको जिह्वा जो थी वो साम थी, और नाड़ी पित्तवात थी। डायग्नोसिस उसका एंडोमेट्रियोसिस विथ अपत्यकांक्षिणी। योनि में वेदना, रोजोदुष्टि सजेस्ट योनि व्यापथी है, वायातिक और रक्त पित्त दुष्टि ऐसा कंसिडर करके रक्तवह स्रोतस आर्तवह अपानवह स्रोतस की इन्वॉल्वमेंट है। प्रिडोमिनेटली पित्तवात की दुष्टि है। एंडोमेट्रियोसिस अगर आप आयुर्वेदा को कोरिलेट करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि त्रिदोषज योनि व्यापत उसको कंसिडर करना है, और रक्त दुष्टि उसके साथ रहती है। तो इसका मेन की पॉइंट हमने अपान वायु, कॉन्स्टिपेशन जो था, तो अपान वायु को करेक्शन, और रक्त दुष्टि अग्नि की दुष्टि इसको करेक्ट करना, ये मेन की पॉइंट ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग उसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट दी थी, प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज दिया था, रक्त शोधन, वातानुलोमन और आर्तवजनन चिकित्सा उसको दी थी, और रेगुलर फॉलोअप एंड सोनोग्राफी उसकी हमने की थी। मतलब ये गोल रखा था। तो उसकी फर्स्ट डे पे, मतलब जब मेरे पास वो फर्स्ट टाइम आई थी, तो उसको मैंने सारिवा मंजिष्ठावटी रक्तपाचक गंधर्व हरित की पीसी स्टो और कैस्टर ऑयल लोकल एप्लीकेशन के लिए दिया था। उसके बाद 21 डेज का फॉलोअप उसको मैंने फॉलोअप को वो आई थी, तो फॉलोअप में भी उसको सेम मेडिकेशन हमने रिपीट की थी। तो सारिवा मंजिष्ठावटी क्यों दी? तो एज अ वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी एक्शन करती है, साइकिल को रेगुलेट करती है, ब्लड प्यूरिफायर है, इसका ये सोच के एक दी थी। रक्तपाचक जो है वो बेसिक फिर से रक्त शुद्धि करेगी, और जो आम है उसको भी पचन करेगी, तो ऐसा सोच के वो दिया था। उसके साथ साथ पीसी स्टो ये टैबलेट दी थी, जो जो कि बेसिकली सिस्ट और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काम करती है। और यूटेराइन जो मतलब ये हुआ है एंडोमेट्रियोटिक पैचेस है, उसको कम करने के लिए भी हेल्प करती है। और उसके साथ साथ वातानुलोमक के लिए गंधर्व हरित की दी थी, जो माइल्ड लैक्सेटिव काम करती है। और उसके साथ साथ एक कैस्टर ऑयल दिया था, जो लोकल एप्लीकेशन। कैस्टर ऑयल क्यों? तो वहाँ का एडेजन पेल्विक इन्फ्लेमेशन, तो कैस्टर ऑयल वो बेसिकली अच्छी तरीके से कम करता है, तो वो रिड्यूस करने के लिए लोकल एप्लीकेशन दिया था। बाद में जब वो फॉलोअप के लिए आई, तो उसका फ्लो जो था वो अच्छी तरीके से, मतलब उसको जो स्कैंटी फ्लो था, तो वो इम्प्रूव हो गया था। पेन उसका रिड्यूस हो गया था। और मेन उसका जो इसके टाइम पेन था, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स जो पेन था, वो भी उसका कम हुआ था। मेडिकेशन में उसका कंटिन्यूअसली फिर हमने सारिवा मंजिष्ठा रक्तपाचक और गंधर्व हरित की ऐसा ही उनको हमने बोला था। तो उसके रिपोर्ट्स में आप देखोगे तो सिम्टोमेटिक पेशेंट का जो रिलीफ है
उसके फॉलोअप के अकॉर्डिंग इंटरकोर्स का पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब उसका धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था, रिलीफ मिल गया था, पेन टोटली कम हुआ था। और फिर अभी उसको बेसिकली कंसीव भी हो गई है। मैंने उसका रिपोर्ट एक्चुअली नहीं डाला यहाँ पे, लेकिन वो पेशेंट कंसीव भी हो गई है। तो उसका ये रिपोर्ट है दोनों भी। तो उसमें उसका पूरा एंडोमेट्रियोटिक पैचेस जो था वो पूरा गया था, और हिमोरेजिक सिस्ट वहां पे उसकी अभी रिसेंटली वो फॉर्म हुई थी, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस जो था उसका ओवेरियन का, वो टोटली उसका उसमें रिलीव हो गया था। केस समरी में उसका राइट ओवेरियन लीजन चेंज मल्टीपल टाइनी एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट टू द हिमोरेजिक सिस्ट। 35 सेंटीमीटर्स का जो था वो बेसिकली 11 पॉइंट सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुआ था, और सिम्टम्स में काफी उसको इम्प्रूवमेंट था। उसको मैंने एक्चुअली पंचकर्मा विरेचन बोला था, लेकिन पेशेंट ने वो किया नहीं, उसी में वो नेचुरली कंसीव हो गई। ये एडेनोमायोसिस की केस है। एडेनोमायोसिस भी आप देखोगे तो एडेनोमिस ग्लैंडुलर टिश्यू ग्रोथ होती है, मायो मीन्स मसल में। मसल में अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो उसको हम एडेनोमायोसिस ऐसे बोलते हैं। एडेनोमायोसिस इज ए कंडीशन वेयर द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस ब्रेक डाउन टू द मसल वॉल ऑफ द यूटेरस एंड लीडिंग पेनफुल एंड हेवी पीरियड्स एंड एनलार्ज यूटेरस। मतलब एंडोमेट्रियोसिस में हम देखते हैं कि जो एंडोमेट्रियल के पैचेस है वो क्या होते हैं, तो वो अलग अलग जगह पे जाके स्प्रेड होते हैं। तो ऐसा ही एडेनोमायोसिस में क्या होता है, वो टुवर्ड मसल मतलब मायोमेट्रियम में पेनिट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और वहां पे उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मसल्स में मतलब मसल्स में ग्रोथ होने की वजह से पेशेंट को पीरियड के टाइम में पेन होता है। क्योंकि मसल एट द टाइम ऑफ पीरियड जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस का, तो उस टाइम क्या होता है, पेशेंट को मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मसल्स में जो सिस्ट है या मसल्स में जो ग्रोथ हुई है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उसकी वजह से पेशेंट को वहां पे पेन होता है। तो एडेनोमायोसिस को रिलेट विथ योनि व्यापक, रक्तदुष्टि ग्रंथि, मांसज ग्रंथि, एसिडिक दर्द, ऐसे आप अलग अलग कंडीशन के साथ उसको कोरिलेट कर सकते हो। तो इसका भी अगर आप रीजन देखोगे तो अति व्यायाम, अति गर्भ मतलब रिकरेंट एबॉर्शन हुआ है या रिकरेंट प्रेगनेंसी रही है बहुत बार, तो ये भी एक कारण एडेनोमायोसिस का होता है। अभिघातज, वहां पे चोट लगना, अपथ्य ज्यादा सेवन करना, या बीजोदोष कुछ रहेगा तो उसकी वजह से भी ये होता है। रक्त दोष रहे, मांसपेशी धातु में दोष रहे, वात पित्त में दोष रहे, तो उसकी वजह से ये हेतु उसके बताए हैं। पीरियड मेंस्ट्रुअल फ्लो में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी एडेनोमायोसिस हो सकता है। उसके लक्षण में आप देखोगे तो पीरियड के टाइम अत्यधिक ब्लड होना, ब्लीडिंग होना, उसके साथ साथ पेन होना। एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस में सबसे मेन डिफरेंस यही है कि एंडोमेट्रियोसिस का जो पेन होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, एडेनोमायोसिस में जो पेन होता है वो एट द टाइम ऑफ पीरियड बहुत सीवियर पेन होता है ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। पेल्विक रीजन में स्वेलिंग होती है, पीरियड इरेगुलरिटी एडेनोमायोसिस में ज्यादा देखने को मिलती है, और वहां पे जो पीरियड का फ्लो होता है वो भी हेवी होता है। पीरियड प्रेगनेंसी रहने में इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और टेंडरनेस जो होता है पेल्विक रीजन में प्रेस करने से भी पेशेंट को पेन होता है, तो पेल्विक टेंडरनेस वहां पे ज्यादा होता है। उसके साथ साथ उसको वीकनेस होता है, और जैसे क्लॉट होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें ग्रंथि में सबसे स्तन ग्रंथि ये मेन कभी कभी देखने को मिलता है, वहां पे आश्रय श्री वेदना ज्यादा होती है, वहां पे वृद्धि जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो वो किस दोषों की वजह से देखने को मिलेगी, यहाँ पे वो चार्ट दिया है। अगर पेशेंट को पेनलेस सिर्फ फॉर्म है, ग्रंथि है, तो वो कफक आधिक्य वहां पे ज्यादा है। पेशेंट को वहां पे टेंडरनेस है, पेन है, तो वो वात की वजह से है। वहां पे स्पर्श असत्व है तो वो डिस्कम्फर्ट है, स्पर्शासत्व है, कभी कभी पेशेंट को वहां पे थोड़ा सा हीट फील होता है तो वो वात पित्त की वजह से होता है। और वहां पे अगर ग्रोथ है सिर्फ तो वो कफ की वजह से हो सकती है। अचल है मतलब वो अगर इमूवेबल है तो वो वात कफ की वजह से होता है। वहां पे वो स्मूथ इन टच है तो वो कफ की वजह से है। अग्निमांद्य रहेगा ज्यादा तो वो कफ की वजह से है। हार्मोनल दृष्टि है ज्यादा है, मेंसेस में इनरेगुलरिटी है तो वो त्रिदोषों की वजह से है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये समझना है। वात और पित्त दोष ये मेन ज्यादा वाइटेशंस होता है, और उसमें अपान वात तो रिस्पॉन्सिबल है ही, क्योंकि अपान की वजह से ही ये सब
विमार्ग गमन होता है। रक्त दुष्टि जो कि इसमें ज्यादा देखने को मिलती है, मांस दुष्टि ज्यादा होती है क्योंकि वो मस्क्यूलर टिश्यूज में ग्रो होता है, इसकी वजह से इसमें मांस धातु ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। आवरण जो है, जो जिसमें अपानवात में कफ और पित्त का आवरण होता है और फॉर्मेशन ऑफ ग्रंथि, वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम एक वीडियो देखेंगे तो इसको आपको पता चलेगा कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में वो किस तरीके से एडेनोमायोसिस ग्रो होता है। इस तरीके से वो बल्कि यूटेरस एक्चुअली हो जाता है। वो मसल वॉल की इन्वॉल्वमेंट कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसके स्टेजेस होते हैं, मतलब वो इन्वॉल्वमेंट उसकी जितनी रहेगी ओवरऑल ये होगा तो फोर्थ स्टेज उसको कंसिडर किया जाता है। तो मेन यही असंतुलित आहार शैली, रक्त दोष की दृष्टि, धातु दृष्टि, इसकी वजह से एंडोमेट्रियल अगर टिश्यू की ग्रोथ है तो उसकी वजह से भी एडेनोमायोसिस होता है। तो इसको मेन पंचकर्म से क्लीनिंग करना, वात पित्त कफ दोषों का शमन करना, रक्तस्राव को नियंत्रित करना, पेन कम करने के लिए उसको मेडिकेशन देना, मेंटल स्ट्रेस अगर कुछ रहेगा, तनाव है तो वो कम करने के लिए उसको उसके अकॉर्डिंग डाइट एक्सरसाइज हमें देना है। और उसके साथ साथ बाकी उसके सेल्फ जो ये होती है केयर होती है वो पेशेंट को करने के लिए बोलना है। तो पंचकर्मा में वमन या विरेचन जैसे पंचकर्मा हम कर सकते हैं। इसमें भी हमें दोषों की इन्वॉल्वमेंट कौन सी है पहले ये देखना है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। आप विरेचन विरेचन भी कर सकते हैं। बघू शकतो आणि तू म्हणताय तर नाही इसका Just a ये minute. और है माइक वात आणि please unmute yourself also. Sorry, because I have muted everyone. तुमचं पण माईक बंद झालं. हॅलो मॅम, तुमचा पण माईक म्यूट झाला आहे, तुम्हाला स्टार्ट करायला लागेल. हॅलो सारिका मॅम, योर माइक इज म्यूट मैम. ओके, अभी आ रही मेरी आवाज। हाँ मैम, आप ओके जब मैंने सबको म्यूट किया ना तो आपका भी माइक म्यूट हुआ था, ओके 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 तो ओके आप रिपीट कीजिए 2 मिनट्स यस यस वाला. ओके। पंचकर्मा में जैसे मैंने बोला दोषों के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कौन सा कर्म करना है, लेकिन विरेचन पंचकर्म आइडियली ज्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि वो पित्त के ऊपर भी काम करता है, वात के ऊपर भी काम करता है। तो विरेचन पंचकर्म ज्यादा सजेस्टेड रहेगा क्योंकि हम इसमें जो घी देते हैं मात्रा बढ़ा के वो और ज्यादा इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हेल्प करता है। और जो बल्कि यूटेरस हुआ है ड्यू टू एडेनोमायोसिस वो भी कम करने के लिए अच्छा हेल्प करता है। उसके साथ साथ वात और पित्त का शमन करे ऐसे द्रव्य हमें देने हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग रुकाने के लिए भी उसको मेडिकेशन देना पड़ता है। और डाइट और एक्सरसाइज मैंडेटरी है और उसके साथ एक्सरसाइज में जैसे मैंने बोला कि एब्डोमिनल वर्कआउट के ऊपर ज्यादा फोकस करने को बोलना है। सेल्फ सेल्फ केयर में नींद प्रॉपर लेने को बोलना है।
जितना प्रॉपर रात की नींद होगी, रात का जागरण उनका टल जाएगा, उतना अच्छा है। और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में उनको हमें बार बार काउंसलिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत बार पेशेंट के वो कॉम्प्लिकेशंस देख के पेशेंट कभी कभी घबरा जाते हैं कि उनको लगता है कि उसको ट्रीटमेंट ही नहीं है। बहुत बार ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि ऑपरेट करते हैं, लेकिन ऑपरेट करके भी फिर उनको ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। आज ही मेरे पास सुबह एक केस आई थी, एंडोमेट्रियोसिस उसको था, लेकिन वो एंडोमेट्रियोमा का उन्होंने अप्रोच किया, ऑपरेट किया था, लेकिन फिर से उसको हुआ। उसके साथ साथ इतना वो फैल गया था कि लेफ्ट ओवरी अभी उसकी विजिबल ही नहीं है, लेकिन वो इतना, और उसके साथ साथ उसको कंसीव भी करना था। तो सब ये जो होते हैं तो पेशेंट बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए हमें पेशेंट को बार बार पॉजिटिव काउंसलिंग जो है वो करना पड़ता है। उनको इसकी दिशा अगर आप अच्छी तरीके से समझाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को हम इससे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन उसको सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट के एफर्ट्स होते हैं, और वही एफर्ट्स उनको किस तरीके से लाना है वो हमें बार बार काउंसलिंग से उनको बताना पड़ता है। ये एक केस है एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस की। ये पेशेंट 30 ईयर्स की लेडी थी, जिसको लोअर एब्डोमेन पेन था। पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे पे बहुत इंटेंस पेन था, तो उसको फर्स्ट डे पे ऐसा होता था कि उसको एडमिट ही करना पड़ता था, इतना सीवियर पेन पेशेंट को था। इरेगुलर साइकिल थी उसकी। हिस्ट्री में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ऑलरेडी थी, 2017 में वो ऑपरेट की थी। उसकी हिस्ट्री लेने के बाद पीरियड इरेगुलर, सॉरी डाइट उसका इरेगुलर था। मोशन उसको क्लियर नहीं हो रही थी, स्लीप उसकी डिस्टर्ब थी, रात को लेट स्लीप थी, रात को 1-2 बजे वो सोती थी। पीरियड का फ्लो उसका अच्छा था, 3 डेज फ्लो जाता था, लेकिन फर्स्ट डे पे इतना पेन था कि उसको एडमिट ही करना पड़ता था। इसका वो क्लिनिकल बैकग्राउंड है जिसमें आप देखोगे तो उसकी मल्टीपल टाइम सोनोग्राफी की है, तो उसमें उसकी साइज जो है 21 में एक हुई थी, 22 में हुई थी, 23 में, 23 में भी उसकी सोनोग्राफी वो एक 6-6 महीने के बाद वो करती रहती थी। तो उसमें लास्ट में आप देखोगे तो उसको एडेनोमायोसिस था, और लेफ्ट ओवेरी में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो थी वो उसमें इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिल रही है। ये इसका 2023 का रिपोर्ट था, जिसमें उसको लेफ्ट पोस्टीरियर लैटरल एडेनोमायोसिस था। उसको 3 पोल इकोस था वहां पे, एक 33 mm का, एक 22 mm का, और एक 21 mm का। और राइट ओवरी जो थी वो पार्शियली कोलैप्स हुई थी। लेफ्ट ओवरी में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट थे, और मार्कली एडेजन्स जो थे उसको पेल्विक में थे। तो ये उसके फाइंडिंग्स थे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एडेनोमायोसिस विद एंडोमेट्रियोसिस, हमारी दृष्टि से वो योनि व्यापद ही है, त्रिदोषज योनि व्यापद या रक्त रक्त योनि या ग्रंथि, हम किसी को भी इसमें मिमिक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके लक्षण थे। संप्राप्ति घटक में वात रक्त की दृष्टि, रस दुष्य, रस रक्त और आर्तव दुष्य है। आर्तव स्रोतस, रसव तोतस और रक्तव स्रोतसों की दृष्टि थी। ऐसा कंसिडर करके संघ था, ग्रंथि थी, ये सब कंसिडर करके उसको हमने ट्रीटमेंट शुरू की। ट्रीटमेंट में मेन वातर रक्त का शमन करना है, अग्नि का दीपन करता है, ग्रंथि का भेदन करना है, और आर्तव स्रोत शोधन का स्रोतसों का शोधन करना है, और उसके साथ योनि शुद्धि करनी है। इस तरीके से सोच रखे। कामदुदा रस उसको दिया था, जो पित्त का शमन करेगी, रक्त की शुद्धि करेगी। गंधर्व हरित की दिया था। त्रिफला गुग्गुल दिया था, जो दीपन पाचन भी करेगी, रक्त की शुद्धि भी करेगी, और वहां का इन्फ्लेमेशन जो है वो भी कम करने के लिए हेल्प करेगी। कैस्टर ऑयल लोकल एप्लीकेशन लिए दिया था। शंखवटी जो है वो आम पाचन, वातानुलोमन प्लस पेन को रिड्यूस करती है, इसीलिए शंखवटी भी उसको मैंने दिया था। ये 5 ड्रग उसको दिए थे। मेडिकेशन उसका कंटिन्यू हमने रखा था। मेडिकेशन देन बस्ती पे उसको पुटअप किया। 8 दिन का उसका प्रॉपर मात्रा बस्ती कर लिया। उसमें सिर्फ बस्ती होने के बाद मांसपाचक और कैन इसके करके एक फॉर्मुलेशन है, जिसमें आफ्टर बस्ती मतलब उसका प्रॉपर वात का अनुलोमन ये सब होने के बाद ग्रंथि का भेदन करना है। इसके अकॉर्डिंग कांचनार, वरुण, भल्लात, गुड़वेल, यष्टि, मंडूर का एक फॉर्मुलेशन है, कैन इसके करके वो उसको दिया था। और रसांजन का लेप उसको लोकली एप्लीकेशन दिया था। उसमें दारू, हरिद्रा, हरिद्रा, कर्पूर, गोदंती भस्म है, तो वो लोकल एप्लीकेशन के लिए उसको रसांजन का लेप दिया था। पंचकर्म जो बस्ती किया उसमें योग बस्ती किया। योग बस्ती में तेल, धन्वंतर तेल यूज किया था। वात, पित्त, कफ तीनों को कंसिडर करके 60 ml का मात्रा बस्ती, और निरूह बस्ती में एरंड मूलादि का बस्ती दिया था, जो कि आपान वायु का शमन और ग्रंथि का विश्लेषण करे, शोतहर ऐसा
सोच के दिया था। नेक्स्ट प्लान उसको भी मैंने विरेचन बोला था। एरंडमूलादि बस्ती जो है वो स्रोत शुद्धि करता है, वातहर शूलहर है, श्रोणी का आर्तव का, और जो एडिजेंस है उसको कम करने के लिए हेल्प करता है। अनुवासन बस्ती में धानवंतर तेल यूज कर किया था, जो वात का बल्य है, स्नायु बल्य, गर्भाशय को बल्य काम करता है। एरंडमूलादि के कंटेंट ये आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिया है। एरंडमूल, रासना, अश्वगंधा, अतिबला, गुडुचि, पुनर्नवा, आरुद्वत और देवदारू। इसको किस तरीके से बनाना है ये भी यहाँ पे दिया है, जिसमें 100 ml का 100 ग्राम की बरड ली थी, जिसमें 1600 ml पानी डाला था, उसको उबाल के 400 ml रखा था, और 400 ml काढ़ा बना के उसको बस्ती दिया था। प्रक्षेप में मदन फल और बड़ी शिप डाला था, और ऐसा बस्ती बना के उनको हमने वो निरोह बस्ती दिया था। क्लिनिकली आप इम्प्रूवमेंट देखोगे तो पेन डे, फर्स्ट डे पे जो उसको पेन था तो उसको वो फुल डे एडमिट करना पड़ता था, वो हाफ डे पे आया था। उसको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एनर्जी लेवल उसकी बड़ी थी। पेट जो उसका डेली साफ नहीं हो रहा था वो होने लगा था। जो रात को उसको नींद नहीं आती थी, वो रात रात जगती थी, तो वो भी उसका ये है वो इम्प्रूव हुआ था। बाद में इसकी सोनोग्राफी की तो सोनोग्राफी में जो 3 पोल्स थे पहले, वो 2 पोल्स पे उसके शिफ्ट हुई थी। राइट ओहरी में जो ये था वो भी उसका कम हुआ था, मतलब लेफ्ट ओहरी तो पूरी इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रिजॉल्व हुई है, और एडेजन्स था वो अभी भी वैसे ही था, उसमें कुछ कम नहीं था। तो ये दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे डाला है। एडेनोमेटिक के जो रीजन्स थे, जो पहली सोनोग्राफी में 3 पोल थे, वो 2 पोल्स पे हो गए हैं। तो उसका रिडक्शन हुआ था एडेनोमायोसिस का। एडेनोमायोसिस की जो साइज थी 33, 22, 21 mm का, वो 18 × 15 mm पे आ गया था। राइट ओहरी में जो हेमोरेजिक सिस्ट थी वो रिजॉल्व हुई थी। लेफ्ट ओवरी तो टोटल उसकी मतलब रिजॉल्व हुई थी, सिस्ट उसमें नहीं थी। एडेजेंस वैसे भी वैसे ही थे, एडेजेंस में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं थी उसको। तो इतना उसको चेंजेस हमें देखने को मिला सोनोग्राफी में। वैसे ही इस तरीके से एडेनोमायोसिस रहे या एंडोमेट्रियोसिस रहे, ये जो प्रोसीजर्स होती है इसमें बेसिकली हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं ये थोड़े मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जब मिलते हैं तो वो प्रॉपरली क्योर हो जाता है। ये ध्यान में रखो, पेशेंट को ये रिकरेंस नहीं होता है, क्योंकि जब वो मेडिकेशन एलोपैथी की लेते हैं या ऑपरेट करते हैं, लेकिन उसमें रिकरेंस के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। हमें अगर इनको ठीक करना है तो उनको प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से आप और उसके साथ साथ मेडिकेशन देते हो तो ये बहुत अच्छा कम हो जाता है। आगे इस पेशेंट को मैंने विरेचन बोला था, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं है। अभी पेशेंट मेरे पास आती है, उसका पीरियड का पेन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हुआ है, मतलब एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। सोनोग्राफी अभी उसने रिसेंट की नहीं की है, लेकिन वो जब हो जाएगी तो मैं भी वो आपको शेयर करूंगी। वैसे ही हमें सिंपल सीस्ट, हिमोरेजिक सीस्ट, ये जो बहुत होता है, चॉकलेट सीस्ट, कॉम्प्लेक्स सीस्ट, ये भी सेम इसी ही टाइप के होते हैं, मतलब एंडोमेट्रियोसिस और एडेनोमायोसिस जैसे ही ये चीजें होती है। तो इसको भी किस तरीके से सोच रखनी चाहिए, केस टेकिंग तो जैसे मैंने बोला वैसे ही आपको रखनी है, उसका रूट ऑफ कॉज ढूंढना है, एग्जैक्टली उसको क्या होता है, क्योंकि ये सब जो चॉकलेट सिस्ट है, हिमोरेजिक सिस्ट है, इसमें भी रक्त दृष्टि, पित्त दृष्टि, वात की दृष्टि ही होती है। तो इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, इसीलिए ये चार्ट दिया है, तो ये आपको थोड़ा सा गाइडेंस करेगा। इसको चॉकलेट सिस्ट, हिमोरेजिक सिस्ट या सिंपल सिस्ट, ये किस तरीके से ट्रीट की जाती है। इसको ये जो ऑल काइंड ऑफ जो सिस्ट है, इसको सबसे इम्पोर्टेंट दोषों की इन्वॉल्वमेंट कौन सी है ये पहले आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आम का पाचन करना है, उसको लेखन चिकित्सा करनी है, वात का शमन करना है, ग्रंथि का भेदन करना है, और उसके साथ साथ श्रोतहर चिकित्सा करनी है। इस तरीके से आप प्रोटोकॉल रखते हो तो मुझे लगता है आपको चिकित्सा करना आसान हो जाएगा। बाद में रक्त शुद्धि, लोकल थेरेपीज की अगर जरूरत पड़ी तो, बस्ती की चिकित्सा की जरूरत पड़ी तो, इस तरीके से आप 3 to 6 मंथ अगर उनको प्रॉपरली ये मेडिकेशन देते हो, प्रॉपरली उनका फॉलोअप रखते हो, तो पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने में मिलते हैं। ये एक मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे और बाद में किसी के क्वेश्चन आंसर। आप आज कैसे हैं इससे मैटर नहीं है, आप अभी
जो कर रहे हैं कल आपको बेटर होना है, ये सिर्फ आपके ध्यान में होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग आपका अगर आप आगे टुवर्ड उसके जाते हैं तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। इसलिए आपको करते रहना है, सीखना है। जितना आप सीखोगे उतना आप अच्छी तरीके से कर पाओगे, ये ध्यान में रखो। क्योंकि ये एक दो दिन की चीजें नहीं है, सीखना है तो ये हमें धीरे धीरे ही सीखना पड़ता है। इसीलिए आप जितना सीखने की कोशिश करोगे, उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो आपको ये डेफिनेटली एक सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट बनाएगा। किसी के क्वेश्चंस रहेंगे तो वो लेंगे। कब से कोर्स है? ये कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है और 6 अप्रैल से। अभी एक पहले 2 अप्रैल को एक मतलब लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 6 अप्रैल से रेगुलर क्लास आपका शुरू हो जाएगा। यस, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सर्टिफिकेट अप्रूव्ड है, क्योंकि ये अटैब है, मतलब ये आरएवी मतलब राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ उन्होंने जो रजिस्टर किया हुआ ये कोर्स है। अटैब मतलब आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड रहता है, उसके अंदर ये कोर्स रजिस्टर्ड है। तो ये आपको गवर्नमेंट के लिए यूजफुल रहेगा। वेन एग्जाम एंड प्लेस आफ्टर 3 मंथ्स खत्म होने के बाद ये एग्जाम रहती है। अगर अप्रैल में ये स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल मई जून तक ये होगा। जुलाई में आपकी एग्जाम होगी, जुलाई। ऑफलाइन ट्रेनिंग 3 डेज का रहता है। हाउ मेनी डेज पर मंथ लेक्चर? आपके डेली डेली मंडे टू थर्सडे ये लेक्चर्स रहते हैं। सी सेक्शन कार में रिपीटेड पल्स डिस्चार्ज और स्मॉल एरियाज है। endometriosis, ma'am, can we treat with Ayurveda at the time 4 years of sections can finding several? यस, कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से आप ट्रीटमेंट देना शुरू करो, डेफिनेटली वो अच्छा आप उसको कर सकते हो। रिपीटेड डिस्चार्ज अगर वहां पे हो रहा है तो गंधक द्रुति जो रहती है सी सेक्शन के स्कार पे, गंधक द्रुति का आप वहां पे लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हो। उससे भी बहुत अच्छा पस कम हो जाता है, जो स्कार में पस रहता है वो। 4 years. हाउ टू यूज कैस्टर ऑयल लोकल एप्लीकेशन, लास्ट लेक्चर आपने नहीं, हाँ। फर्टिलिटी मसाज जिस तरीके से करते हैं, मतलब नाभि पूरन जैसे करते हैं, वैसे ऑयल आपको नेवल के ऊपर छोड़ना है और फिर सर्कुलर मोशन में 100 टाइम्स आपको नेवल की सर्कुलर टाइम वहां पे पोजीशन में घुमाना है 100 टाइम। तो इस तरीके से आप कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन वहां पे कर सकते हैं। टिश्यू ग्रोथ अगर कैंसर में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टिगेशन जो है वो करना पड़ता है, उसी से आप डिसाइड कर पाओगे। अगर पेशेंट को नॉन साइक्लिक ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, पेन है, हेवी फ्लो है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैंसर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करके ये ग्रोथ कैंसर है कि नहीं आप वो डायग्नोस कर सकते हो। Ma'am, in allopathy, when chocolates is diagnosed, why they stop menstrual and it is for according to? नहीं, एक्चुअली वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन रुकाते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप करते हैं। आज जो सुबह का एंडोमेट्रियो का पेशेंट आया था वो भी वैसे ही था। उसको 3 महीने डॉक्टर ने वो एलोपैथी मेडिसिन दिए थे कि उनकी पीरियड जो है वो स्टॉप हो जाए, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर एक तरफ से उनके पीरियड स्टॉप कर रहे हो और दूसरी जगह उसको ट्रीट कर रहे हो तो ये नहीं होगा। आपको साइमल्टेनियसली ये करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर एक जगह पे एक्यूमुलेशन है और एक दूसरा प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन को आपको क्लैरिफाई किस तरीके से करना है, डाइट और एक्सरसाइज से। और दूसरी बात, जो एक्यूमुलेट हुआ है उसको निकालना है। तो ये आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि इसको हम बेसिकली रज का अवरोध ही बोलेंगे। और रज का अवरोध जितना होगा उतनी ही उसकी वात रक्त की दृष्टि और बढ़ेगी, ये ध्यान में रखो। तो इसीलिए उसको टेम्पररी पेन रिलीफ होता है पेशेंट को। जब मेंस्ट्रुअल उनके पीरियड स्टॉप किए जाते हैं तो उनको टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बिल्कुल सेफ नहीं है। वो पेशेंट को आगे जाके डेफिनेटली तकलीफ देगा, उससे पित्त रक्त दृष्टि और बढ़ेगी, वात रक्त दृष्टि और बढ़ेगी। तो ये सेफ नहीं है उसको। मैंने आज उनको वही बोला कि आपका ये
21 का, क्योंकि उसको 21 साइकिल डेज कंप्लीट होने के लिए बोलना है, बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि आप बीच में बंद करते हो तो फिर उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको मैंने वही बोला कि आप 21 डेज जैसे भी खत्म हो जाते हैं मेडिकेशन बंद करो, आपके पीरियड आने दो, और साइमल्टेनियसली ये डाइट एक्सरसाइज का उसको मैंने प्लान दिया है, तो ये और अपनी मेडिकेशन ये चालू रखना है, तो उससे उनका पेन रिलीफ करने के लिए अच्छा फायदा होगा। 40 years female having right iliac fossa pain since 4 years. Now irregular menses, 2 months cycle with 1 month flow since 6 months. USG bulky uterus. How to treat? बल्कि यूटेरस है और प्री मेनोपॉजल कंडीशन में है, राइट इलियाक फोसा में पेन है, तो पेशेंट को बेसिकली थोड़ा डाइजेशन रिलेटेड इश्यू पहले रहेगा, वो ध्यान में रखो। हिस्ट्री प्रॉपर ले लो, तो पहले डाइजेशन उसका करेक्ट करना है। बल्कि यूटेरस के लिए आप उसको एरेंडामोल देवदार गोक्षुर पुनर्नवा का जो फॉर्मुलेशन है वो दे दो, मतलब एरेंडामोल देवदार गोक्षुर पुनर्नवा, ये जो कंटेंट है वो सम प्रमाण में लेना है, उसको मॉर्निंग सुबह शाम देना है। क्योंकि आप अगर उसको ये करते हो, एरंडामूल देते हो, तो ये अनुलोमक वात का अनुलोमन भी करता है, वहां का बल्कीनेस है वो भी कम करने में हेल्प होता है, और जो राइट इलेक्ट फोसा में उनको पेन है वो भी कम होगा, क्योंकि वहां का जो पेन है वो किस वजह से है, एक सोनोग्राफी में वो सिर्फ बल्कि यूटेरस है तो ठीक है, वहां पे आप लीच थेरेपी लगाओ, तो वहां का पेन भी, उसका पीरियड आने के पहले का 15 दिन का पेन वो भी सबसाइड होने के लिए हेल्प होगी। और उसके साथ साथ वहां पे जैसे मैंने कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन दिया था वो भी आप दे सकते हो, तो उससे भी अच्छा कम होगा। लेकिन लीच लगाओ अगर पेन उसको पीरियड के बिफोर 15 डेज है तो। 31 ईयर्स फीमेल पेशेंट सीवियर एब्डोमिनल पेन है, 6 month बैक, बर्निंग मिक्चुरेशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, इम्प्रेशन एंडोमेट्रियोसिस है। हाउ टू ट्रीट? जैसे मैंने अभी बोला सर, वैसे आप उनको ट्रीटमेंट देना शुरू करो, जैसे मैंने ट्रीटमेंट दिया सारिवा मनिष्ठावटी कांचना गुगुल गंधर्व हरित की, ऐसे भी आप देते हैं तो भी अच्छा फायदा होगा। बर्निंग मिक्चुरेशन है, मतलब इसमें पित्त की वृद्धि ज्यादा है, तो पित्त को कंसिडर करके और रक्त का प्रसादन करें, वात का अनुलोमन करें, ऐसे ट्रीटमेंट आप इसमें दे सकते हैं। यस, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। इफ चॉकलेट सिस्ट इन बोथ ओवरीज विथ साइज 7 mm लेफ्ट फॉर 4.8 सेंटीमीटर इन राइट, मैनेजेबल। यस, मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें प्रॉपरली चॉकलेट सिस्ट को आप विरेचन पंचकर्म लोकली वहां पे थोड़ा सा लीच थेरेपी करना होता है, और बाद में लेप थेरेपी करना होता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलती है 3 to 4 month, लेकिन अच्छा फायदा होता है। एक मंथ में आप उनका विरेचन करवा लो, दूसरे मंथ में आप उनका बस्ती करवा लो, और रेगुलरली उनको रसायनजन का लेप लगाने को दे दो, और 15-15 डेज के बाद उनको लीच थेरेपी कर लो, तो अच्छा फायदा होता है। चॉकलेट सीज तो बहुत अच्छी जल्दी कम हो जाती है। यस, अगर एडेनोमायोसिस में दशमूल हिंगू अष्टक का भी ये करेगा, हेल्प करेगा। पेशेंट को बहुत पेन है तो आप बस्ती भी दे सकते हो। यस, सेम मेडिकेशन पेशेंट को अगर कंप्लेंट्स ये है तो आप कंटिन्यूअसली 3 मंथ तो दे सकते हो। एवरी 3 months यू कैन डू यूएसजी एंड देन यू विल डिसाइड इट्स रिड्यूस और नॉट, सो यू कैन कंटिन्यू 3 to 6 month। ऑफलाइन एग्जाम कहाँ होगा? ये निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल पूना में होता है ऑफलाइन एग्जाम, निर्विकार ज्ञान संकुल का जो सेंटर है वहां पे। एसओपी ऑफ एडेनोमायोसिस मैंने अभी बताया मैम, वही आप फॉलो करो, वही है। स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो अच्छा फायदा होगा। थैंक यू। शमन चिकित्सा कौन सी डिग्री तक करना है विदाउट पंचकर्मा? आप 2nd डिग्री तक शमन चिकित्सा कर सकते हो, लेकिन 3rd और 4th रहेगा तो आपको पंचकर्मा की जरूरत होती है। पंचकर्मा से क्या होता है, बेसिक हम जल्दी थोड़ा रिजल्ट पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि जो घृतपान मैंने बोला ना, विरेचन के लिए जो घृतपान देते हैं वो ड्रास्टिक रिजल्ट पेशेंट को देता है। टाइम क्या रहेगा लेक्चर का? इवनिंग टाइम रहता है, सॉरी आफ्टरनून टाइम रहेगा 2 to 3:30। उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता है, अगर आप एक दिन अटेंड नहीं कर पाओ दोपहर को तो आप इवनिंग को वो लेक्चर अटेंड कर सकते हो, नाइट को वो लेक्चर सुन सकते हो। उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और पीडीएफ जो होती है
वो हम देते हैं ग्रुप पे। यस, आपको यस, मैं मंजू मैम का नंबर यहाँ पे शेयर करती हूँ, तो आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप पे देंगे। इसमें क्या करी, मल्टीपल फाइब्रॉइड में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? मल्टीपल फाइब्रॉइड है, लेकिन वो कहाँ पे है उसको, सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बोला कि साइज कितनी है वो बहुत मैटर करती है, साइज के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ता है। और पेशेंट जो है वो आपके पास किस पर्पज के लिए आए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट आपके लिए फर्टिलिटी के लिए आई है और उसकी फाइब्रॉइड साइज अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो आप उसको ऑपरेट करो, क्योंकि उसको थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, उसमें पेशेंट का बहुत टाइम जो है वो जाता है। अगर पेशेंट को फर्टिलिटी का कोई इश्यू नहीं है तो आप इसको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि ये हमें बेसिक थोड़ा सा सीवेरिटी के ऊपर डिसाइड करना पड़ता है। पेशेंट को अगर जल्दी है तो आप उसको खेलो मत, डायरेक्टली उसको आप ऑपरेट करके उसको जो टारगेट है उसका वो करने को बोलो। अगर अबो 5 सेंटीमीटर है तो, अब बिलो 5 सेंटीमीटर है तो हम इसको ट्रीट कर सकते हो 3 3 मंथ्स की ट्रीटमेंट में हमें उनको बोलना है। और 3 3 मंथ्स के बाद आपको उनको सोनोग्राफी करना है ट्रीटमेंट देके। जो फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट दोगे 3 मंथ्स बाद रिपीट सोनोग्राफी करना है, उसमें कितना रिड्यूस हुआ है वो देखना है। और उससे आपको डिसाइड करना है कि आगे आपको ट्रीटमेंट करनी है कि नहीं। हाँ, क्योंकि लेकिन पेशेंट के साइड से जो डाइट और एक्सरसाइज रहती है वो भी पेशेंट किस तरीके से फॉलो करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम ट्रीटमेंट देके छोड़ते हैं, लेकिन पेशेंट अगर घर पे ये सब नहीं फॉलो करेगा तो प्रॉब्लम होगी, ये ध्यान में रखो। तो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट के ऊपर हम 100% वॉच नहीं रख सकते। तो पेशेंट को उसकी अ, जो सीवेरिटी है वो हमें बार बार बतानी पड़ती है, उसका जो काउंसलिंग है वो हमें बार बार करना पड़ता है। मैंने एक एक नंबर अभी शेयर किया है हेडा सर का, वो भी आपको सब इंफॉर्मेशन दे देंगे। और मैम का भी देती हूँ, और मेरा भी नंबर यहाँ पे पर्सनली देती हूँ। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो मुझे पर्सनली भी आप पूछ सकते हो, उसका जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं आंसर करूंगी। मैम, हाँ बोलो। वो सी सेक्शन का डाउट पूछे है ना मैम, वो हाँ। मेरा पर्सनली है मैम। हम्म। वो अभी 7 इयर्स हो रहा मैडम, सेकंड सेक्शन होके हाँ, 3.5 इयर्स से स्टार्ट हुआ मैम, ऑन एंड ऑफ हो रहा है। ऑन एंड ऑफ मतलब कब होता है वो, मतलब कब बोले तो उसका टाइम कुछ नहीं है मैडम, नॉट रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। ओके। और बाकी आपका ये कैसा है मैम, मतलब लाइफस्टाइल कैसी है, पित्त की कुछ तकलीफ होती है? डाइट थोड़ा डिले होता था मैम, अच्छा। टाइमिंग टाइमिंग्स अच्छा मेंटेन नहीं करे। ओके ओके। नहीं, आप उसको बेसिकली थोड़ा गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला, ये इंटरनली हाँ, लेना शुरू अभी कर दो। पंचतिक्त गुलू गंधक रसायन महामंजिष्ठारिष्टा हाँ। चंद्रप्रभा यूज कर रहे हैं मैम। ओके, और उसके साथ गंधक द्युति जो मैंने बोला वो आप वहां पे लोकली डेली लगाओ, जहां से पस आता है ना वहां पे डेली लगाओ। तो उससे अच्छा फायदा होगा वहां पे। विदाउट एंटीबायोटिक्स वी कैन यूज दिस मैम। क्या क्या? हाँ, एंटीबायोटिक्स यूज नहीं कर रहे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है मैम। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन कंटिन्यू चालू रखो, कोई जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक की। ओके मैम। सिर्फ डाइट में देखो पित्त बढ़ाने वाला कुछ नहीं जा रहा है ना, वो ध्यान रखो, मतलब दही छाछ है या कर्ड है या कुछ ओके, फर्मेंटेड है, ऐसा तो नहीं जा रहा है ना, वो ध्यान में रखो। हाँ। छाछ भी अवॉइड करना है मैडम। हाँ, यस यस, टोटली छाछ अवॉइड करना है। अचार रहेगा तो अचार भी, जिसमें जिसमें लवण ज्यादा है, पित्त की वृद्धि हो, ऐसे आपको नहीं खाना है, क्योंकि लवण से ये ज्यादा बढ़ता है, ये ध्यान में रखो। ओके मैम। लो एमएच और प्राइमरी इनफर्टिलिटी, हाउ टू ट्रीट। लो एमएच जो होता है वो बेसिकली हम बोलते हैं कि ओवरी जो है वो रिजर्व को लगने की वजह से लो एमएच होता है। ये नॉर्मली अगर इसकी फिजियोलॉजी हम देखेंगे तो ये प्री मेनोपॉजल, सॉरी, मेनोपॉजल स्टेज में ये ज्यादा देखने को मिलता है।
तो अगर आपके लो एमएच वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपका जो गर्भाशय है उसको बेसिकली वृद्धत्व आया है, उसका एज हुआ है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो लो एमएच को सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, हमें रीजेन्युएट करना है। तो रीजेन्युएट करने के लिए वमन पंचकर्म सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें भी पेशेंट के ये देखना है कैसा है, पहले केस टेकिंग से पेशेंट वात वृद्धि वाला है, पित्त वृद्धि वाला है या कफ वृद्धि वाला है। लेकिन आइडियली वमन पंचकर्म या विरेचन पंचकर्म आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि इसमें घृतपान जो है पेशेंट को ज्यादा जाना चाहिए। घृतपान ज्यादा जाता है तो बेसिक हम उसको अंदर से सेल का रिजेन्युएशन जो है वो अच्छी तरीके से हो जाता है, और उसके बाद फिर हमें फॉलिकुलर ग्रोथ बढ़ाने के लिए मेडिकेशन देना है, जिसमें पुष्पधनवा है, एलोस कंपाउंड है, या मधुमालिनी वसंत है, या लोकल बस्तीज रहते हैं, ये भी अच्छा काम करते हैं। जैसे भी पीरियड खत्म होते हैं तो आप वहां पे चंदनमला तेल का या शतावरी तेल का मात्रा बस्ती कंटिन्यूअसली देते हो 6 डे से लेके ओव्यूलेशन पीरियड तक। तो एएमएच वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज होती है, और पेशेंट को घृतपान भी इसके साथ आपको देना है। लो एमएच की ट्रीटमेंट वैसे कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है, क्योंकि उसमें हमें एक क्वालिटी के ऊपर मेन फोकस करना पड़ता है। एक क्वालिटी अगर आप अच्छी तरीके से इंप्रूव करते हो तो पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फाइब्रॉइड और ट्यूबल ब्लॉक ऑपरेट हो चुका है, पेशेंट कंसीव नहीं हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है वो देखना पड़ेगा। ट्यूबल ब्लॉक ऑपरेट हुआ है लेकिन क्यों कंसीव नहीं हो रहा है, पेशेंट की ओवरीज की फॉर्मेशन अच्छी तरीके से है क्या, फॉलिकुलर ग्रोथ अच्छा है क्या, ईटी अच्छी है क्या, ये सब आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ कंसीव नहीं हो रहा है ये डाल के नहीं होगा मैम, प्रॉपर हिस्ट्री दे दो फिर मैं बोलती हूँ आपको। मेरा पर्सनली नंबर मैंने यहाँ पे शेयर किया है, आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। इनफर्टिलिटी पेशेंट विथ यूटेराइन पॉलिप है, कैन वी ट्रीट? यस, यूटेराइन पॉलिप है 1.5 सेंटीमीटर का। यस, पॉलिप को हम एज अ अर्शवत अगर आप ट्रीटमेंट देते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉलिप है मतलब अर्श जैसे आता है वैसे ही होता है। तो आप इस कंडीशन में हमारे पास एक्चुअली एक फॉर्मूला हमारा है खुद का, रक्तार्श, सुखार्श और अर्श कुठार, और उसके साथ साथ कामधुदा, ऐसा हम यूज करते हैं। तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है यूटेराइन पॉलिप के लिए। वो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म थोड़ा देना पड़ता है 4 to 6 मंथ, और उसके बाद फिर पेशेंट की रिपीट सोनोग्राफी करनी पड़ती है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से कम होता है। और अर्श को जैसे हम बोलते हैं कि मेन उसका अग्नि ही मेन ये होता है, अग्निमांद्य। तो वैसे ही इस केस में भी आपको अग्निमांद्य ही पहले देखना जरूरी है। वो देखते हो, करेक्शन करते हो तो बहुत अच्छा फायदा पॉलिप के लिए होता है। थैंक यू पद्मा मैम, थैंक यू। वमन के लिए आप शोधन ग्रुप मतलब तिक्तक ग्रुप से करते हो तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वमन तिक्तक ग्रुप यूज करना है। लेफ्ट इलेक्ट फोसा में पेन फ्री फ्लूइड है, और सैक बल्कि यूटेरस है तो क्या दें? लो लीच थेरेपी करो। लीच थेरेपी अगर पेशेंट करवाता है तो बहुत अच्छा फायदा। लीच नहीं करना है तो आप वहां पे रसायन का लेप लगा सकते हो, वो भी अच्छा काम करता है। और बल्कि यूटेरस को जैसे मैंने बोला, एरंडमूल, देवदार, गोक्षुर, पुनर्नवा, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, ये आप पेशेंट को दे सकते हो। हेलो। और किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछो, अदरवाइज जो जिसको ये रहेगा मेरे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पर्सनली भी आंसर करूंगी जैसे टाइम मिलता है वैसे। ओके, चलो मैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा ऐसा समझती हूँ। मेरा मुझे जितना समझ में आता है उतना मैंने बताने की कोशिश की है, मतलब जिस तरीके से हम एंडोमेट्रियोसिस एडेनोमायोसिस को ट्रीट करते हैं, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर एक की ट्रीटमेंट करने की सोच भी अलग हो सकती है। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, मैं जिस तरीके से ट्रीटमेंट करती हूँ वो आपको देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। बाकी किसी के क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझे ग्रुप पे डाल दो।
Sometimes in USG diagnosis made the adenomyosis, but the patient there is a no severe dysmenorrhea. Then how to make it perfect? सिर्फ आप प्रॉपरली एडेनोमायोसिस जो चेंजेस दिख रहे हैं उसको ट्रीट करने की कोशिश करो। अगर पेशेंट को कुछ कंप्लेन नहीं है तो आप सिर्फ नॉर्मली सादा उनको मांसपाचक और गंधर्व की ऐसा भी देते हो तो वो पैचेस कम हो जाएंगे। जरूरी नहीं, अगर उनका वात का अनुलोमन अच्छा होता होगा तो पेशेंट को डिस्मेनोरिया नहीं रहेगा। लेकिन एडेनोमेटिक पैचेस जो है वो पेशेंट कंसीव के लिए ट्राई कर रही तो वो उसको प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो हमें यही सोचना है कि उसको हमें कम करना है। Madam, if polyp is outside the uterus, is it problematic for to conceive? नहीं, Otherwise, how to treat नहीं it? बिल्कुल नहीं। अगर यूटेरस के बाहर है तो कंसीव के लिए कुछ अच्छा ये नहीं होता है। अगर यूटेरस के बाहर है तो आप उसको क्षार भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब जैसे हम उत्तर बस्ती करते हैं वैसे ही कसकोज लगा के उसको क्षार अप्लाई करते हैं तो भी वो यूटेरा सर्वाइकल पॉलिप्स जो है वो अच्छा कम हो जाता है। एक तो अंदर का रहेगा तो उसको टाइम लगता है, लेकिन सर्वाइकल पॉलिप तो बहुत जल्दी कम हो जाता है। Okay, sir. Which हम्म। kshara do you suggest? अपामार्ग क्षार या यवक क्षार जो होता है ना वो आप इसको यूज कर सकते हो। Okay, ma'am. Thank you. 6 मंथ की प्रेगनेंसी है, नो हार्ट बीट्स, विच मेडिसिन कैन वी यूज? हार्ट बीट नहीं है, लेकिन अभी इसको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 6 वीक्स में एक्चुअली हार्ट बीट्स आना चाहिए। फिटल पोल यॉर्क सैक है कि नहीं ये भी आपको देखना है। अगर हार्ट बीट्स नहीं है तो उसको लाने के लिए हम काश्मीरी अधिकृत देते हैं या सीचू अनंता का क्षीरपाक देते हैं। सीचू सीतोपला चूर्ण अनंता, इसका क्षीरपाक भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ सुजात का कैप्सूल जो है वो देना है। क्षीरपाक फॉर्म में आप दोगे तो हार्ट बीट्स 1 वीक और वेट कर सकते हो। अगर 1 वीक में वो हार्ट बीट्स नहीं आते हैं तो फिर आपको वो अबॉर्ट करना पड़ेगा। लोकली आप उनको मात्रा बस्ती भी दे सकते हो पेशेंट को, शायद इसका चंदन वाला तेल का, तो वो भी अच्छा काम करता है। लेकिन उसके पीछे उसका डाइट देखो, मतलब वो पेशेंट कुछ हेवी खा रही क्या, उसका अग्नि अच्छा आएगा। क्योंकि हार्ट बीट आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसका अग्नि अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो भी वो खा रही है वो उसको डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर उसको नहीं हो रहा है तो उसको आप लिक्विड डाइट पे रखो, तो उससे उसका अग्नि अच्छा हो जाएगा और उसका बेबी को भी वो ब्लड सप्लाई अच्छा होगा और उससे हार्ट बीट्स आने के लिए हेल्प होगा। क्योंकि फर्स्ट 6 वीक्स फर्स्ट स्टेप जो होती है वो 6 वीक्स की होती है, सेकेंड स्टेप जो होती है वो 12 वीक की होती है। तो 6 वीक्स में हमें प्रिकॉशनरी डाइट जो होता है पेशेंट का वो लाइट ही रखना है। क्योंकि इम्प्लांटेशन प्रोसेस अभी बिगिनिंग में है और जो भी बेबी को ब्लड सप्लाई होता है वो माँ टूवर्ड माँ से ही होता है। तो इसीलिए हमें जितना पॉसिबल हो उतना लिक्विड डाइट पे पेशेंट को रखना है, तो वो तर्पण अच्छा हो जाता है। तो अपने आप अ, गर्भाशय का पोषण अच्छा हो जाता है, वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ता है और कार्डियक एक्टिविटी आने में अच्छा फायदा होता है। ओके, थैंक यू। मुझे बाकी लोग मुझे पर्सनली ये कर लो, उनका मैं ये आंसर करूंगी जैसे भी टाइम मिलता है। थैंक यू सो मच। पता नहीं आ जाएगी कहाँ से तो आता